कोई भी मैं मेल इसको देख रहा है, सो उसे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाना चाहिए कि इफ दिस इज व्हाट यू परसुइंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट। फूड प्रोडक्ट जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है, वो मेल्स ने या तो नहीं खाने चाहिए या कम खाने चाहिए। पर्पज ने मुझे मेंटली स्ट्रांग रखा। मेरे माइंड में बस ये रहता है कि जो मसल में हिट कर रहा हूँ, उस मसल को मैं स्टार्टिंग से लेके एंड के सेट तक उसका मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस मसल पे हो। जनरली इसको गायनोकोमस्टिया बोलते हैं। आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सो यू कैन पिक अप द राइट थॉट एट द राइट टाइम। देसी काऊ का घी इज अ हेल्दी फैट, पीनट ऑयल इज अ अनहेल्दी फैट। How do you attain the certain level of clarity that would direct you towards the right direction? Or you have to gain knowledge. What you have to do, read at least one page every day. You are building a system. This makes a difference in your day-to-day life, not just the long-term goal. Then Lisa Mangaldas, these people are means genuinely teaching sex education to the people on YouTube on an open platform. So the youth should go and watch it for the perspective of a knowledge. Compromise नहीं करना होता है, आपको adjust करना, and there is a difference. जब आपके लाइफ में सुख आएगा, आपको बहुत उछलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है। जब आपकी लाइफ में दुख आएगा, आपको फिसलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है। और पर जब आपने जता दिया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती कि लाइक देन व्हाट इज इट फॉर। अगर आपको जताना ही है तो इट्स नॉट अनकंडीशनल, देन इट्स नॉट लव। यही बोलती हूँ कि हैव अ बेबी व्हेन यू हैव सॉर्टेड आउट योर बैगेजेस। You are not bigger than any universal power. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्वो विद आयुष। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो डू चेक देम आउट बिकॉज़ वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड ऑन वेरियस एरियाज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, हीलिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड अ लॉट मोर। हर एक वो चीज जो आपको स्किल डेवलपमेंट में या आपकी पर्सनालिटी को और एनहांस करने में जरूर काम आएगी। सो डू वॉच देम। पर आज का एपिसोड भैया बहुत ही हटके और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने बहुत सारे सेगमेंट्स कवर किए हैं इसमें भी। And the guest is a very interesting person, my very dear friend, and someone who is carrying the super speaker fame with him. You will get to know why when you hear the interaction between us. But इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे लिटरली एक लिस्ट बनानी पड़ी because he does so many things. He is Adarsh Gangwani. He is an engineer. By profession, he was a mechanical engineer, but what he actually does is life engineering. He's a life coach, public speaker, counselor, influencer, health and wellness coach, mental health coach. He's fond of fitness and mountaineering. He has in-depth knowledge of mental and physical fitness, especially for men. All the people जिन्हें मुझसे शिकायत थी that you're not bringing a men-oriented episode, this is it. This is for you. So do watch till the end, and especially for the men, कोई भी query, कोई भी doubt, कोई भी interesting opinion हो, do share it in the comments along with your learnings and takeaways. Another interesting thing about Adarsh is that our goal is kind of similar. He paraphrases it like, you will learn a lot about things that are necessary to live a better life and have some lessons from his life as well in this podcast. And that's exactly what I aim at as well, to help people achieve a healthy, balanced, and luxurious lifestyle. So, where two amazing aims are meeting, ये podcast तो बहुत धांसू होना ही है. Do watch till the end and let me know how it made you feel and what emotions it brought out in your heart. Let's begin. Hi Adarsh, welcome to Convo with Aish. How are you doing? Yeah, I'm doing good. Thank you for having me. Yes, काफी पापड़ बेलने पड़े for this podcast. काफी टाइम से हम ट्राई कर रहे थे. Now it's finally happening. Yes. Yes. The first thing that I noticed was when I asked you for photos, like of all the transformation you have been through, because you have done a lot. Personal development में, fitness पे, psychology पे, counseling पे, life coaching पे, सब कुछ you have done. So the first thing I was like, यार इस इंसान ने बहुत मेहनत किया. I told you this also. So for a person who has done so much from such a young age, what does fitness mean to you, and how does it begin in your life? Fitness began in my life when I passed out 10th standard. वो हर लड़के को रहता है कि 10th होने के बाद मैं जिम ज्वाइन करूंगा, अच्छी फिटनेस करूंगा वगैरह वगैरह. So I joined right after my 10th. It's been 10 years now. And at that time I was just doing gym workout and all. There was no diet and all this stuff.
But slowly I started studying about it. I started seeing trying different things for myself in case of diet and all. And then I entered into it, and still I'm consistent. See, I think that fitness is not just about doing workout. It's about mental fitness, it's about emotional fitness, it's about physical fitness, it's about spiritual fitness as well. If your mental fitness is good, your physical fitness is good, and it goes the other way around also. Okay, being Yes. physically fit keeps you mentally fit also, because physical fitness gives you a sense of accomplishment, that you have achieved something in life. Maybe it's a good physique, or you have lost your fat, or you have been, or you have gained confidence by doing workout and all, lifting those heavy weights and all. And mentally also, it's that's important. It's like as gym is for physical fitness, then for mental fitness it's meditation, then some mental practices that will help you improve your memory or concentration. In spiritual fitness, I'll say that meditation also comes in spiritual fitness. In some form, you should be attached to the universe or God, whatever you believe in. Okay, and emotional fitness is you should not get disturbed by anything. Means whether it's good or it's bad, it's emotional or it's anything. Like you have got a heartbreak, you should not be disturbed by it if you have a heartbreak, because many people get disturbed with a heartbreak. Then if someone's tell good about you on social media, you should not start appreciating it or not start jumping too much. If someone criticizes you on social media, आपको दुखी नहीं होना है कि यार इसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला वगैरह वगैरह. So that comes under emotional fitness. So ये सारी चीजें जब सही proportion में होती है, then I can say that yeah, a person is completely fit. This is my definition of fitness. Wow. That was a well depth answer. But what I want to know is कि ये शुरू कैसे होता है? Like यार ये तुमने casually बोला कि 10th के बाद सबको जिम जाना होता है, ऐसा नहीं होता है. I've seen people who are in such an unhealthy lifestyle till like 30, 35, फिर उनका जागता है कहीं से कि नहीं अब तो करना पड़ेगा. So it is not a normal thing to be so aware about mental fitness, emotional fitness and physical fitness. So someone who is beginning now, what would you suggest them? कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और क्या-क्या चीजें करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो शुरू करने के लिए मैं बोलूंगा कि स्टार्ट विद बेसिक्स. ठीक है, जैसे कि अगर आप पहली बार जिम जा रहे हो, तो आप यू हायर अ ट्रेनर. ओके, यू हायर अ ट्रेनर बिकॉज जिम वर्कआउट में फॉर्म, जो जिस फॉर्म में आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, हर वर्कआउट का एक अलग फॉर्म होता है जो इंजरीज प्रिवेंट करने के लिए, करेक्ट मसल टारगेट करने के लिए जरूरी होता है. तो वो फॉर्म आपको पता नहीं होता है. आज भी बहुत सारे नए लोग आते हैं जो ट्रेनर हायर नहीं करते, या फिर ट्रेनर्स उनको गाइड नहीं करते. उनकी फॉर्म गलत होती है वर्कआउट करने की, जो इंजुरीज की चांसेस बढ़ा देते हैं. तो सबसे पहले तो एक ट्रेनर हायर करो, वेल सर्टिफाइड ट्रेनर. और उसके बाद डाइट, तो आपको डाइट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए भी आपको एक प्लान चाहिए. तो भले ही वो आपका ट्रेनर वो दे सकता है, या फिर कोई डाइटिशियन दे सकता है. और अगर आप किसी स्पोर्ट में खेल रहे हो, तो वह वहां पे भी मतलब बेसिक आइडिया है कि आप जो भी नया स्टार्ट कर रहे हो किसी भी फिटनेस में, चाहे वो जिम हो, कोई स्पोर्ट हो, यू हैव अ गाइड, कि जो आपको गाइड करे, हैव अ मेंटोर. खुद से सारी चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करो. ठीक है, मैंने ये किया है, मैंने खुद से सारी चीजें एक्सप्लोर की. कभी इंजुरीज भी हुई है, बट फिर पता चला कि नहीं यार, एक प्रॉपर गाइड चाहिए. वो गाइड कोई भी हो सकता है, वो आपके लिटरल वहां पे आपके साथ हो सकता है, या फिर वो जूम कॉल पे हो सकता है, या फिर आप यूट्यूब आज बहुत नॉलेज मिल रहा है यूट्यूब से. आप यूट्यूब से भी कौन सी एक्सरसाइज कौन से फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में करनी है, ये सीख सकते हो. सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट. टूशे. सो ये तो हो गई जनरलाइज्ड बात एक, बट आई एम वेरी इंट्रीग्ड अबाउट, आई वांट दिस पॉडकास्ट टू बी अ मेन सेंट्रिक पॉडकास्ट, कि अगर कोई भी मेल इसको देख रहा है, सो उसे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, हर तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाना चाहिए कि इफ दिस इज व्हाट यू आर परसुइंग इन पर्सनल डेवलपमेंट, दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट. तो मेरा की कंफ्यूजन ये है कि आई हैव डन फीमेल सेंट्रिक पॉडकास्ट ऑन फिटनेस एंड वेलनेस, तो विमेन का आई नो पर्सनली ऑल्सो, बट आई वांट टू नो कि क्या डिफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू मेन, डाइट की फॉर्म में भी, बिकॉज ऑफ कोर्स द बॉडीज आर सो डिफरेंट. सो व्हाट इज लाइक, अगर हम कोर डीप में जाएं, इफ यू वांट टू नो इट फ्रॉम द कोर, तो क्या एक जनरलाइज चीज होती है? एक तो बॉडी वेट में डिफरेंस होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, तो कैसे इसको केटर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर नाउ, देन वी विल डाइव डीप.
ओके, तो फिजिकल फिटनेस में बेसिक चीज है कि वुमेन्स में जो हार्मोन होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोजन विच इज अ फीमेल हार्मोन, एंड मेन हैज टेस्टोस्टेरोन विच इज अ मेल हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल बिल्डिंग बेसिकली, और जो वुमेन्स होती है उनमें एस्ट्रोजन होता है, बट थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन वुमेन्स में भी होता है और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है। तो जब मेन आर वर्किंग आउट, ओके, तो उनका टेस्टोस्टेरॉन लेवल अच्छा रहना, तो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से उनका मसल बिल्डिंग अच्छा होता है। वेर एज वुमेन में, वुमेन जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर जिम करूंगी तो मेरे अच्छे मसल हो जाएंगे, बट वो मसल इतने फाइन या इतने शार्प नहीं होते जितने मेल्स के होते हैं। ठीक है, तो मेल्स में और वुमेन्स में वर्कआउट के समान यही डिफरेंस है। वर्कआउट जो होता है वो बदलता रहता है, मतलब हर 15 दिन में, हर एक महीने में अगर आप ट्रेनर वगैरह हायर करो तो आपका वर्कआउट प्लान बदलता रहता है, आपका जो अल्टीमेट गोल है उस हिसाब से। सो व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, विच वर्कआउट इज वर्किंग फॉर यू, वो सारा एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है और हर किसी की बॉडी हर अलग अलग चीजों को रिस्पॉन्ड करती है। देन कंसिडरिंग डाइट, तो डाइट का मैं बताऊं तो मतलब ऐसा जनरलाइज, मेजोरिटी ऑफ जनरलाइज है डाइट। बस एक की पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट्स जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है, जो प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स जिसमें एस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में होता है, वो मेल्स ने या तो नहीं खाने चाहिए या कम खाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन, जो सोयाबीन होता है उसमें एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, सो एस्ट्रोजन इज अगेन अ फीमेल हार्मोन एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर फीमेल्स। Females, ओके, right? अगर मेल्स वो ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो उनका एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा और टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि उनमें चेंजेस एज अ वुमेन होने लगते हैं, उनकी आवाज बदल जाएगी, उनमें फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस दिखने लगेंगे अगर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जनरली इसको गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं कि मर्दों को, हाँ, गायनोकोमेस्टिया, जो बहुत कभी कभी ऑपरेट भी करना पड़ता है क्योंकि एस्ट्रोजन की मात्रा मेल्स में बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एक और रीजन है मिल्क। मिल्क जो लोग पीते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आजकल जो मिल्क आता है तो वो भी बहुत सारा ईस्ट्रोजन, काउ से जब मिल्क निकालते हैं तो बहुत सारा ईस्ट्रोजन वो सीक्रेट मिल्क के साथ सीक्रेट कर देती है, जो हमारे अंदर जाता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डाइट, की जो चीजें ज्यादा ईस्ट्रोजन है वो मेल्स ने कम खानी है, और जो चीजें ज्यादा प्रोटीन एमिनो एसिड्स देती है जिसमें ईस्ट्रोजन नहीं है वो चीजें ज्यादा खानी है। कंसिडरिंग मसल बिल्डिंग, फैट लॉस में आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो, फैट्स उतने ही रखो। मतलब अभी जो मिथ्स है, मतलब एक जनरली अगर मिथ कोई बर्स्ट करनी हो फिटनेस के लिए, तो 3 मिथ्स मैं बर्स्ट करना चाहूंगा। पहली मिथ तो ये है कि वुमेन्स आपकी मसल्स डेवलप मर्दों के जैसे नहीं होती। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सटर्नली कोई टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, अनटिल एंड अनलेस स्टेरॉइड के फॉर्म में अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, तो आपकी उतनी इंसेन, मर्दों जैसी इंसेन मसल बिल्ड नहीं होगी। ठीक है, This is तो actually उसका the टेंशन only लेने की profit of PCOD, क्योंकि I have PCOD और PCOD में ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, तो women who have हाँ, PCOD उनका मसल बिल्डिंग कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर होता या ये तो वो, दैट इज द रीजन, बिकॉज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। है टेस्टोस्टेरोन। या यस, गो या ऑन, अब नंबर 2। दूसरी मिथ है कि फैट खाने से मैं फैटी हो जाऊंगा या मेरे बॉडी में फैट्स तैयार हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप फैट्स खाने से आपके फैट्स नहीं बढ़ते। अगर आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स जितनी बॉडी को जरूरत है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का कन्वर्जन वो फैट में कर देता है। ओके, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी का इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा हो तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, फैट में कन्वर्ट देती है। किसी का इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो तो वो ये नहीं करती। मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, मैं कितना भी खाऊं, प्लीज मेरे इलैबोरेट कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है। ओके, इंसुलिन इज अ हार्मोन जो आपके फूड में से न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड में पहुंचाता है। ओके, इंसुलिन इज अ हार्मोन, तो कुछ जो लोग ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिव है उनमें न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी फूड वो अंदर डाल रहे हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है वो, उनका इंसुलिन ज्यादा स्पाइक नहीं होता। जो इंसुलिन सेंसिटिव वो स्पाइक करता है उनका इंसुलिन बहुत ज्यादा। ओके, और मतलब जो उन्हें इंसुलिन, ज्यादा शुगर लगेगा तब उनका इंसुलिन स्पाइक। यस, नहीं नहीं नहीं, उनका इन जनरल ही अगर वो शुगर खाए तो क्या पता सारी की सारी शुगर एब्जॉर्ब हो जाए उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से। अब मुझे अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, तो जितने न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जाते हैं वो मतलब मेजोरिटी एब्जॉर्ब नहीं होते।
तो मुझे क्या करना है, मुझे वर्कआउट करना है जिससे मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाए कि फूड नॉर्मल से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए मेरे अंदर। ठीक है, तो ये दूसरी मिथ है। और फैट जो मैं बोल रहा था, तो फैट्स का ऐसे होता है कि आप फैट्स कितना ही खाते हो, 4-5 बादाम कितने ही फैट्स होते हैं उसमें, कुछ ग्राम्स, 5 ग्राम, पांच पांच भी नहीं, 5 ग्राम भी ज्यादा नहीं, और एक स्पून ऑफ लिटिल स्पून ऑफ ऑयल, कितना ही फैट होता है वो। ठीक है, तो फैट्स फैट्स में कन्वर्ट नहीं होते, जनरली होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट होते हैं। और मैं आपको बताऊं, मसल बिल्डिंग के लिए सिर्फ प्रोटीन जरूरी नहीं है, प्रोटीन विथ हेल्दी फैट्स इज नेसेसरी फॉर मसल बिल्डिंग। ओके, और फैट्स खाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो आपके जो ऑर्गन्स है उन्हें न्यूट्रिशन फैट्स से मिलता है। आपके ऑर्गन्स को, आपकी मसल्स को तो प्रोटीन से मिलता है, बट ऑर्गन्स को फैट से मिलता है। दो तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, एक होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट मतलब जो आपकी स्किन के नीचे रहता है, जस्ट नीचे, वो है सबक्यूटेनियस। और विसरल फैट मतलब जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो भी चिपचिपी चीज है, तो वो विसरल फैट है जो ऑर्गन्स में होता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने फैट्स खाना कम कर दिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी, आपके बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी फैट्स है उसे होल्ड करेगी, उसे बर्न नहीं करेगी। आप कितना भी वर्कआउट करो, आपने फैट्स नहीं खाए, आपकी बॉडी उन फैट्स को होल्ड करके रखेगी, क्योंकि उसको उनकी जरूरत है, वो छोड़ नहीं सकती उसको। ठीक है, तो एक्सटर्नली अगर आपने गुड फैट्स डालने बंद कर दिए, आपकी बॉडी फैट होल्ड करके रखेंगी। और लोग बोलते हैं कि मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, इतना डाइट फॉलो कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स इसकी वजह से नहीं मिल रहे क्योंकि आप फैट्स नहीं खा रहे, तो बॉडी ने वो होल्ड करके रखी है, क्योंकि उसको एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी फैट्स की जरूरत है। परफेक्ट। ठीक है, और एक और चीज ऐसे कि सेम गोज विद सॉल्ट। लोग क्या करते हैं, सॉल्ट बंद कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मोटापना बढ़ जाए। तो सॉल्ट बेसिकली क्या करता है, सॉल्ट वाटर होल्ड करता है बॉडी में। ठीक है, बट अगर आप सॉल्ट बंद कर दोगे ना, तो आपके बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट होती है ना, उसमें से सॉल्ट की मात्रा बाहर पड़नी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने सॉल्ट ही बंद कर दिया। तो बॉडी ने जितना सॉल्ट बॉडी में था उतना होल्ड करके रखा, क्योंकि उसको जरूरत है। बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू सर्वाइव इन एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आपको सॉल्ट, आपको ज्यादा कम नहीं करना है, थोड़ी सी मात्रा में रखिए सॉल्ट। और फैट्स, आपको हेल्दी फैट्स लेने बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट्स, आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड हेल्दी, हेल्दी फैट्स। ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू नो कि हेल्दी और अनहेल्दी फैट्स में क्या डिफरेंस है। गिव एग्जांपल्स। हेल्दी फैट्स, आलमंड्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे हेल्दी फैट्स है। फिश ऑयल, ठीक है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये सारे आ गए हेल्दी फैट्स में। अनहेल्दी फैट्स जो आप ये ऑयल है आपका, नेचुरल सनफ्लावर ऑयल भी होता है ना, वो अनहेल्दी फैट में आता है। और फिर आप अगर बाहर जा रहे हो, आप तली हुए चीजें खा रहे हो, तो वो तली हुई चीजें एक ही ऑयल में बार बार तली जाती है, और वो ऑयल रैंसिड हो जाता है तब तक। तो दैट इज अगेन अनहेल्दी फैट। राइट, ये देसी काऊ का घी इज अ हेल्दी फैट। अगेन पीनट ऑयल इज अनहेल्दी फैट। बट इट्स लाइक कि ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल बहुत महंगे होते हैं, लोग जनरली अफोर्ड नहीं करते। घर घर में हर कहीं पे सनफ्लावर ऑयल और यही चीजें है। बट आप घी उसको रिप्लेस करके गावरान घी आप यूज कर सकते हो। तीसरा मिथ, यस, ये स्पेशली मेन लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ काफी मेंस को मिसगाइड किया जा रहा है। मतलब रिसेंटली मैं जहाँ जिम में जाता हूँ, वहां अभी 10वीं के एग्जाम्स हो गए हैं, तो नए लड़के आए हैं, जिम ज्वाइन की है। तो मैंने देखा कि ट्रेनर ने सजेस्ट किया कि आप सपोर्टर पहनते जाओ। ठीक है, सपोर्टर इज लाइक, जैसे पहलवानी में लंगोट होता है ना, दैट इज सपोर्टर फॉर द जिम पर्पज। बट यहाँ पे ये ऐसा है कि देखो, एक तो जो साइकिलिस्ट होते हैं, जो रनर होते हैं, जो पहलवान लोग होते हैं, उनका वो सपोर्ट या फिर वो पैंट पहनने के पीछे एक पर्पज होता है। वो पर्पज ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन को वो एलिमिनेट कर सके। ठीक है, अभी इसको आप फर्दर ये कर लो, समझ लो। ठीक है, या तो वो डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए वो पहनते हैं। अब देखा जाए तो जिम में कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें आपको रनिंग करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, या फिर कुश्ती करनी पड़ती है। आपको बस वेट उठाना होता है, तो वहां पे दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और बहुत से लोगों को लगता है कि हार्निया हो जाएगा अगर मैंने सपोर्टर नहीं पहना तो। बट जिनका एब्डोमिनल जो वॉल होता है, एब्डोमिनल वॉल, वो अगर वीक होगा ना, तो उनको हार्निया होना है। ठीक है, बहुत कम लोगों को हार्निया होता है, बट जिनकी एब्डोमिनल वॉल वीक है उनको हार्निया होता है। हार्निया इज बेसिकली जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, उसका जो एंड होता है ना, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है।
ठीक है, तो उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है क्योंकि लोअर स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होता है जो अनबेरेबल होता है। तो इसलिए हार्निया हैज नथिंग टू डू विथ वियरिंग सपोर्टर। ठीक है, जिसकी एब्डोमिनल वॉल वीक है उसको हार्निया होना है। और एक और चीज, अगर हम इसको बायोलॉजिकली देखें तो मेल्स को ये समझना जरूरी है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, स्पेसिफिकली मेंस की बॉडी, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स है वो बॉडी के अंदर है, ठीक है, एक्सेप्ट वन ऑर्गन दैट इज टेस्टिकल्स जो बॉडी के बाहर है। उसके हम्म, पीछे एक पर्पस है। वो पर्पस ये है कि अगर वो जो टेस्टिकल्स है उसका टेम्परेचर बाकी बॉडी पार्ट्स के टेम्परेचर से कम होता है, ओके, ओके, एंड ओनली एट दैट टेम्परेचर इट कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स विच आर फर्टाइल। ठीक है, हम्म, तो होता क्या है, जब सपोर्टर पहना जाता है ना तब वो टेस्टिकल्स बॉडी से चिपक जाते हैं, और जब आप वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी की हीट बढ़ जाती है। सोचो अगर जिम में बहुत गर्दी है या फिर एसी नहीं चल रहा है, तो वो जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। और अगर ऐसे ही आप सपोर्टर पहन के वर्कआउट करते रहे तो फिर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके टेस्टिकल्स में आ जाएगा, और आपका जो स्पर्म फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म प्रोडक्शन है, उस पे वो मतलब हैम्पर हो जाएगा। हम्म, स्पर्म सपोर्टेड फर्टिलाइज्ड। ओके, तो इसलिए सपोर्टर पहनना नहीं चाहिए। ये एक मिथ है कि सपोर्टर पहनना चाहिए, बट सपोर्टर नहीं पहनना चाहिए, और इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं विच इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो बॉयज को ये ध्यान रखने की जरूरत है, सपोर्टर मत पहनो अंटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसा स्पोर्ट कर रहे हो जिसमें आपको बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत स्प्रिंट्स करने पड़ रहे हैं। जिम के लिए सपोर्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक और मिथ, मतलब मैंने जो, पता नहीं मुझे हर कहीं मिथ है या पर मैंने यहाँ पे सुनी है, मैंने यहाँ पे सुनी है कि अगर आपने सपोर्टर नहीं पहना तो आपकी टेस्टिकल्स की साइज कम ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मैं ज्यादा वेट मारता हूँ और बॉडी बिल्डर्स भी वेट मारते हैं, बहुत अच्छा खासा स्क्वाट्स में वेट मारते हैं, 100 किलोज 150 किलोज, तो उनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये स्पोर्ट जो है ये इंडिया का स्पोर्ट नहीं है, बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, ये स्पोर्ट्स हम्म, बाहर से आया, और वहाँ उन्होंने ऑलरेडी इस पे काफी सारी रिसर्च करके रखी है, तभी वो मिस्टर ओलंपिया में जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च करके रखी है, एंड देयर नो वन वेयर्स दिस सपोर्टर स्टफ। ठीक है, ये बाकी स्पोर्ट्स में था, ये अभी जिम के स्पोर्ट या फिर बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में भी आ गया है, और इसका बहुत ऐसा ये हो गया, अगर पहनेंगे नहीं तो ये होगा, ये होगा, ये सब झूठ है। Okay, wow. Lots of myths broken right at the beginning. तो यहाँ से मेरे दो tangential questions है, particularly हाँ, in terms of how your mind works, because it's very peculiar one. So, one, what are the resources that you go to study about nutrition and fitness? And what is your kind? Like अभी आपने बोला कि bodybuilding and gymming is just one form of it, and which is not the ideal either. क्योंकि आप सिर्फ like it's for muscle building, not for overall fitness. पर ओवरऑल फिटनेस के लिए आपको बहुत सारे तरीके के फिटनेस स्पोर्ट या फिर फिटनेस एक्सरसाइजेस या engaging in any kind of sport is necessary for overall body fitness. So do you agree with this, or what is your form of it? So these are the two या things. नहीं नहीं, ये सही है कि आप कोई भी वर्कआउट करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा जिम वर्कआउट ही करो, आप कोई स्पोर्ट खेलो या फिर आप वेट लिफ्टिंग में जाओ या कोई भी वर्कआउट खेलो, बट बॉडी को फिट रखना इट्स लाइक कि फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा फैट नहीं होना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना है। उसको एक्टोमॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, Yes. एक्टोमॉर्फ, एक होता है मेसो, एक होता है इंडो, और एक्टो इज लाइक एक्स शेप। ठीक है, Hmm. बॉडी शेप में रहती है। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट शेप with and you don't have to go over and above। एक बार आप एक सर्टन वेट पे आ गए, सर्टन आपकी बॉडी फिजिक पे आ गए, बस उसको मेंटेन रखना है अच्छे से डाइट फॉलो करके, और ये आप कोई भी स्पोर्ट खेलो उससे कोई ये नहीं है। जस्ट हैव अ गाइड, आई विल टेल यू। ठीक है, एक गाइड होना बहुत जरूरी है, मतलब गुरु के सिवा ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके मत करो बॉडी के साथ। इट्स लाइक रिस्की गेम विद द बॉडी। Okay. All right. So let's go a little back, take a U-turn. Like when you started your journey, let's say you started right after grade 10. So Adarsh at या grade 10 to Adarsh now. कितना difference you see, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं that made that Adarsh this Adarsh? सिर्फ फिटनेस के टर्म्स में या बाकी टर्म्स में भी? All terms, all terms. ओके, तो एक तो मैं जब स्कूल में था तब आई वाज अ वेरी शाय गाय। ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करता था। इट्स लाइक कि वो मैं स्कूल में वो बंदा भी था कि जिसके नाक से कभी कभी नाक बहती रहती थी जिसके। ठीक है, तो मैं वैसा वाला बंदा था, ज्यादा बात नहीं करूंगा, ज्यादा किसी में घुल मिल नहीं जाऊंगा। बट फिर जिम ज्वाइन की, जिम ज्वाइन करने के बाद, जिम ज्वाइन करने का तब यही ये था कि भाई मसल्स बनाने, बॉडी बिल्डिंग करनी है, बस इतना ही ये था कुछ टाइम पे।
फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। कॉलेज लाइफ शुरू होने के बाद 1-2 साल में मेरी फिजिक अच्छी खासी बन गई थी कि एटलीस्ट लग रहा था कि हाँ भाई ये बंदा जिम करता है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा अटेंशन मिलने लगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। और फिर ये तो फिटनेस के टर्म्स में हो गया। तब मैं वीक था, मतलब मैं ऑलमोस्ट 8 स्टैंडर्ड तक हर बार कुछ ना कुछ मुझे होता था और मुझे एडमिट होना पड़ता था हर बार। आई वॉज वेरी वीक एज अ चाइल्ड, ठीक है। और मैं इसलिए इसकी वजह से मैं बहुत पैम्पर्ड भी हूँ। तो जैसे जिम ज्वाइन की तो डिसीजेस होने का ये कम हो गया जिम ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ गई, ठीक है। ये एक चीज हुई। और आज भी मैं जिम करता हूँ। इट्स लाइक कि मैं गोल सेट करके जिम करता हूँ। अभी चेंज मेकर्स के लिए आना था, ठीक है। तो 1 महीना पहले, चेंज मेकर्स के आने से 1 महीना पहले मैंने अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, ताकि मैं मेरी कंडीशनिंग वहां पे अच्छी लगे, ठीक है। Okay. तो 1 महीना पहले तक मेरा वजन था 55 kg, और जी चेंज मेकर्स आने तक 57 kg हो गया था, कि जिससे मैं अच्छा लगूं, ठीक है। तो ये मैंने प्लान किया था। और उसके बाद चेंज मेकर से आने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया डाइट में, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक ड्रॉप कर दिया। एक तो अभी धूप भी है बहुत, तो ज्यादा खाना जाता भी नहीं है, ठीक है। वाटर इंटेक बढ़ा दिया बस। तो अब वापस एमएमआई के लिए जाना है, तो फिर कुछ करूंगा जिससे थोड़ा सा ये हो जाए ऐसा। तो ये चीजें डिफर करती है कि गोल के अनुसार मैं अपनी बॉडी को वैसा फीड करता हूँ, वैसा वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट टाइप करता हूँ। अलग अलग वर्कआउट टाइप्स होते हैं, तो मैं उस हिसाब से ढालता हूँ अपनी बॉडी को। और चेंज कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है मेरा, वर्कआउट की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, जो वर्कआउट करने के बाद एक जो शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट अप हो जाती है, वो ही चीज बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है आदमी का, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। और मैंने अपने इंजीनियरिंग लाइफ में मैंने डिप्लोमा से स्टार्ट किया था। जो शाय गाय था, तो बट परसेंटेज अच्छे थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला। गवर्नमेंट कॉलेज में सारे जितने भी बच्चे थे, सब एक से बढ़कर एक होशियार, हर कोई, मतलब एक से बढ़कर एक फर्स्ट कौन आ रहा है, हर बार किसी न सबके कंपटीशन चलती थी कौन फर्स्ट आएगा। तो वहां पे एक ऐसा होता था, इंजीनियरिंग में पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन होता है, ठीक है। तो हमारे क्लास के या फिर मेरे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सब पार्टिसिपेट कर रहे, तो उनके पीछे पीछे मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया। और हुआ यूं कि पहला पेपर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया, और पहले पेपर प्रेजेंटेशन हम लोग जीत गए, Okay. पहला ही। और उसके बाद जिसके साथ वो किया था, वो बोला अब मैं इंडिविजुअली करूंगा, मैं साथ में नहीं करूंगा, अब मैं इंडिविजुअली करूंगा। मैंने बोला ठीक है। तो हम ऐसे इंडिविजुअली करने लगे। वहां से बड़ा पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग। और मेंटल हेल्थ का बोलूं तो यार, जिंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि मेंटल हेल्थ अपने आप स्ट्रांग होती चली गई। बट एक चीज है कि मेरे पर्पस ने मुझे मेंटली स्ट्रांग रखा, क्योंकि मेरे पास एक गोल है, उस गोल तक मुझे पहुंचना है। चाहे कोई कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मुझे उस गोल तक पहुंचना है, ये मुझे पता है। तो मैं वहां तक पहुंचने के लिए मैं मेंटली मुझे स्ट्रांग रहना है, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी आजमाना पड़े। मैं बहुत रोता हूँ, And what is बहुत that रोता हूँ। purpose? इट्स लाइक कि मुझे मेजोरिटी ऑफ लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा वैल्यू ऐड करना है with life coaching, and I just not want to target just one sector जिससे लाइफ बेहतर होती है। मुझे हर वो सेक्टर टारगेट करना है जिससे लाइफ बेहतर होती है। वो चाहे हैबिट्स फॉर्मेशन हो, वो चाहे स्लीप हो, न्यूट्रिशन हो, फिटनेस हो, वो चाहे सॉफ्ट स्किल्स हो, वो चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वो चाहे इमोशनल फिटनेस हो। ये सारी चीजें जो लाइफ को बेहतर बना सकती Perfect. High five. This is where we connect. है। Yeah. So because this is exactly what I'm aiming for as well. हमारे of course interests थोड़े different है, but ultimate जो target है it's very similar. That we want to cover या different domains of personal development so that we can help as much people as possible क्योंकि it's the need of the hour. सब लोग या लगे हुए हैं कि लाइफ की रेस में, वो मेरे को 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद आता है बार बार कि सब भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता कहाँ पहुंच रहे हैं, बट इन द हाँ, प्रोसेस दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली काउंट एंड मैटर बिकॉज this makes a difference in your day-to-day life, not just the long-term goal. So, यस yes, करेक्ट। kudos to us. All right, so let's start with the overall personality development things now, because I want to point out one thing here. Like we were at the Change Makers, we like traveled Mumbai literally like together with a friend. So these are some things that I noticed that one, you know exactly what one should order and eat. You're very particular about your eating habits. And I was like, hats off. ये जो order करता है, एक तो it tastes also good, but it's also healthy at the same time. So ये combination is pretty good.
Next thing is your clear cut attitude. You know exactly what you want and you're a go getter. You would go for it. कि मुझे ये ऐसे चाहिए and I will do this to get there. And I was like, again, another thing कि influence भी बहुत है. Like let's hit the nail कि the videos that you recorded with all the trainers of change makers and success camp. I was like कि मैं सोच ही रही हूँ कि यार they are like such famous people and you are like कि अभी तक तो वो पहुंच गया and you are with full setup कि मेरे पास माइक है ऐसे रिकॉर्ड होगा just do this even with the collaboration thing. और मैं सोच ही रही हूँ तब तक you are there, you are asking them the questions और मेरे हाथ में फोन है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ and I'm like what just happened? This guy is insane. Next level. जब तक कोई प्रोसेस करे तब तक you are in and you have done it all. And so was with the collaboration. Like even before coming to the event, we were discussing कि ऐसे ऐसे हम collaborate करेंगे. This would be the script. इतना lightly चीजों को and you were like मैंने full plan किया है. मैं gadgets के साथ आया हूँ. And you actually made such awesome content out of it. जो ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं. And nobody even tried for it. अगर किसी ने सोचा भी होगा. So this is a particular thing of your personality that is very, very insanely amazing. क्योंकि idea सबको आते हैं, but you actually have the guts to execute them. So first of all, kudos for that. Congratulations. But now come कि इन सब चीजों के basis पे, what are the elements of a personality that you like approach as? For example, if you're meeting any person, तो किन चीजों पे you would judge in terms of personality या personal development के हिसाब से कि ये point अच्छा है, ये point needs to be improved, तो क्या segments you divide? पर्सनैलिटी लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट कि जो कम्युनिकेशन लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जो बंदा बहुत एक्साइटमेंट में होता है, बहुत एक्साइटेड है कुछ करने के लिए, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, तो मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि ज्यादा एक्साइटमेंट कभी कभी अगले काम को खराब कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो ओवर एक्साइटेड होता है. तो आई मेरे बिलीव कि साथ काम रहना, हाँ, काम रहना बहुत जरूरी है. काम रहना, सिचुएशन कोई भी हो, काम रहना बहुत जरूरी है. मतलब आपको सोचना है कि इसके आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा. काम, माइंड को काम रखना है. सामने कोई भी आए, नरेंद्र मोदी जी खुद आपके सामने खड़े हैं, तो आप अगर कंफ्यूज होकर मैं उनसे कैसे बात करूं, रिस्पेक्ट से एकदम, मतलब एज सिंपल एज दैट, नमस्ते मेरा नाम ये है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बस इतना बोलने में क्या लगता है, क्या ही लगता है, ठीक है. तो इट्स लाइक कि कॉन्फिडेंट रहना है. बस ये इस बात की खबरदार रखनी है कि आप कुछ गलत ना बोल दो एक्साइटमेंट के चक्कर में, ठीक है. तो प्रॉपर थॉट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि आप आगे जाके क्या बोलने वाले हो, कैसे पूछने वाले हो, क्या जवाब आएगा, उसको आप कैसे टैकल करने वाले हो, अगर कुछ आपके ऑपोज में आ जाए कैसे टैकल करने वाले हो. शांत रहकर ये चीजें होती है. एक्साइटमेंट में हो सकता है कि आपको गुस्सा वगैरह भी आए, तो ये जनरली है. और गो गेटर एटीट्यूड, मुझे मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि किसी भी जगह पे आप जाओ, आप वहां पे कुछ ऐसा क्या करो कि सब आपको याद रखे, सब आपको याद रखे. कुछ ऐसा करो, कुछ भी हो, बट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि सबके दिमाग में रहे कि यार इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया था. तो वो क्या है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो डिफरेंस खुद उस बंदे के लाइफ में लाए, या फिर वो डिफरेंस किसी और के लाइफ में लाए वो चीज करने से. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चेंज मेकर्स का एग्जांपल तो आपको पता है, मैंने हर कोच से जाकर एक एक इंटरव्यू लिया और फिर उसे पोस्ट कर दिया. तो एक और चीज, इससे डिफरेंस मेरी लाइफ में आया, ठीक है, दिस ब्रॉट डिफरेंस इन माई लाइफ, कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, 7 मिलियन व्यूज चले गए, दिस ब्रॉट माई लाइफ. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे किसी और की लाइफ में डिफरेंस आया. तो मैं जब आईटी कंपनी सेक्टर में काम कर रहा था, तो वहां पे एक सेशन था हमारा एक होटल में. तो वहां होटल में वेटर्स लोग जो थे वो सर्व कर रहे थे. तो वहां पे एक लड़की थी जो सर्व कर रही थी, और जब हम लोगों ने एंटर किया लिफ्ट से, उस फ्लोर पे एंटर किया, तो शायद उसका मैनेजर उसको कुछ डांट वगैरह रहा था, ये मैंने नोटिस किया था, ठीक है. तो उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था, और जो हमारे कंपनी के लोग थे, जो सीनियर्स थे, तो वो सीनियर्स कैसे मतलब ऐसे बाउल लेके जाएंगे, सूप डाल, मतलब थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे, बट वो ऐसा ट्रीट करते हैं सामने वालों को. हाँ, थोड़ा सा. तो मैं बोला यार, मैंने मतलब वो नोटिस किया था कि शायद उसको डांट पड़ी है इसके मैनेजर से, और ये उदास भी है, और ये लोग भी मतलब
जेन्युइन, मतलब ऐसे ये नहीं दिखा रहे। मुझे सूप पीना नहीं था उस वक्त, अगेन डाइट इशू। तो मैंने क्या किया, मैंने बाउल लिया, मैं उसके पास गया, ठीक है, उसने मुझे सर्व किया, मैंने उसके यहाँ पे बैज लगा था, उस पे नाम था प्रतीक्षा, ठीक है, मैंने उसको बोला थैंक यू प्रतीक्षा। उस बंदी के चेहरे पे स्माइल आ गई, ठीक है। तो इट्स लाइक कि जब आप किसी को नाम लेके संबोधित करते हो ना, तो उसको अच्छा लगता है। इट कुड हैव मेड हर डे, आई डोंट नो, इट कुड हैव मेड हर डे, ठीक है। तो ये ऐसे डिफरेंस, तो आप ये कंफर्म रखो कि आप जिससे भी बात करो, आप पोलाइट हो, वो चाहे भले ही आप पे गुस्सा ही क्यों ना कर रहा हो। और अगर आप पोलाइट नहीं रह सकते, तो वहीं पे कन्वर्सेशन कट कर दो और कहीं और निकल जाए, ठीक है। तो ये, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो फिर वो आपको भी देख रहे हैं कि आप कैसे इस चीज को टैकल कर रहे हो। और अगर आपने भी गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी, उसकी तो हो ही रही है, आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। सो इट्स बेटर यू इधर गेट एग्जिट आउट ऑफ दैट कन्वर्सेशन, और यू हैंडल इट वेल इनफ दैट आपकी इमेज पे कोई ये ना हो। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इमोशनली, मेंटली अगर हम बात करें, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो भाई सारी चीजें जिंदगी में दो बार बनती है, ठीक है, एक तो माइंड में और एक रियलिटी में, ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि आप पूरे प्रिपरेशन के साथ आए थे, ये करना है वो करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था कि मैं क्या जाके क्या बोलूंगा, ठीक है। माइक होगा मेरे हाथ में, मैंने ये भी यहाँ पे रजिस्टर करके रखा था कि मैं हर बार ये चेक करूँ कि वो माइक ऑन है या नहीं, वरना ऐसा ना हो जाए मैं बाइट ले रहा हूँ और माइक ऑन ही नहीं है, तो फिर वो फेलियर हो जाएगा। तो मैंने ये भी यहाँ पे रजिस्टर करके रखा था, मैं हर बार चेक कर रहा था माइक ऑन है या नहीं। Wow. Next level of contemplation. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट्स लाइक कि आप जो करना चाहते हो, पहले उसका एक प्लान बना लो मेंटली कि आप कैसे कैसे करने वाले हो, एंड उसके प्रति पॉजिटिव रहो। और ऐसे भी पॉजिटिव रहो कि भले ही वो वर्कआउट ना करे, बट आपको रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि आपने वो किया नहीं, ठीक है। अगर यस, जस्ट इमेजिन अगर मैं वो सारी तैयारी करके नहीं आया होता, ठीक है, आज जो मुझे रिजल्ट मिला है, अब जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस वक्त वो नहीं किया रहता, तो आज मैं बहुत रिग्रेट कर रहा होता उस चीज को, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू शो अप, वो वर्कआउट हो ना हो वो आपके हाथ में नहीं है, दैट्स नॉट इन योर कंट्रोल। यू जस्ट हैव टू शो अप, यू जस्ट हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड इनफ कि आप वहां पे जाके क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड इसको प्रिपरेशन लगती है, इसको कुछ दिनों की प्रिपरेशन लगती है, ऐसा नहीं कि जाओ और एटलीस्ट कुछ घंटों की प्रिपरेशन तो लगती है कि जाओ और अपने बस कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। चलो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको देखिए, आप अच्छा करो, आप अच्छा ना करो, लोग आपको बोलने ही वाले हैं। लोग आपको बोलेंगे कि, लोगों का बस काम कहना है, वो कहते रहेंगे, आप अच्छा करो या ना करो। तो फिर इमोशनली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्रिटिसिज्म मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर वो मेरे काम का है, उससे कुछ सीखने लायक है, तो ही मैं उसके अंदर का लेसन लूंगा। अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है, मेरे फायदे का कुछ नहीं है, मैं उसे छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इमोशनली उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं किसी का मुंह पकड़ सकूं और बोल सकूं कि तू मेरी तारीफ ही कर, तू मेरे बारे में बुरा मत बोल, ठीक है। तो इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए हमें बस इतना समझना है कि जो हमारे लिए काम का है उतना हम ले, और जो हम लोगों को जिस चीज की जरूरत है अगर हम दे पा रहे हैं, तो वो उनको दे। जस्ट स्टे हम्बल। मैं हमेशा, मतलब मेरी, अगर कोई इफ यू आस्क मी व्हाट इज योर सुपर पावर, इट्स स्टेइंग हम्बल इज माय सुपर पावर एनी टाइम। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटीज भले ही मेरी स्किल देख के ना आई हो, बट मेरी हम्बलनेस और ऑनेस्टी देख के मुझे अपॉर्चुनिटीज आई है। सो दैट्स लाइक कि लोगों का ऐसा बोलना है कि हम्बलनेस ऑनेस्टी बिल्ड करना आसान नहीं है, जो इनबिल्ट है वो ठीक है। स्किल्स तो हम बिल्ड कर सकते हैं, जो हमारे काम के लिए आप में होनी चाहिए, वो तो बिल्ड हो सकती है। हम्बलनेस ऑनेस्टी कहाँ से बिल्ड करेंगे, और व्हाई पीपल वुड इन्वेस्ट टाइम इन डूइंग दैट, ठीक है। तो जो पहले से आया है, तो उसको लेकर फिर, सो दैट रियली ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। यू स्टे हम्बल, यू स्टे ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू क्या बोलते हैं, किसी भी हालत में ये मत सोचना कि मैं अगर थोड़ा सा कुछ अलग या फिर गलत काम कर लूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो फिर शॉर्टकट आपको नीचे ले आता है, ठीक है। सो इमोशनली, फॉर बीइंग इमोशनली स्ट्रांग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टे काम इनसाइड एंड बी हम्बल विद द पीपल। और इससे क्या होगा कि जो आपके आप तक भी आया है ना, उससे भी आपके इस पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर हो भी गया तो क्या करना है, एक ही बार में रो लेना है और उसी वही छोड़ देना है।
रो लो जितना मर्जी रो लो एक ही बार में, बट फिर से उसी कारण को लेकर रोते नहीं बैठना, वो वही छूट गया। क्या रह गया? मेंटल, इमोशनल, नहीं नहीं, स्पिरिचुअल। बहुत सारे इसमें आगे लेसन्स। लेट्स ब्रेक इट डाउन अ लिटिल इनटू सेगमेंट्स फर्स्ट। एक तो आपके वैल्यू, कोर वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर होनी चाहिए कि आपके कोर वैल्यूज क्या है, सो दैट यू कैन यूज इट टू योर स्ट्रेंथ्स। फिर इमोशनल क्वेश्चन इज एक्चुअली वे मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल स्किल्स आज के जमाने में, क्योंकि यू विल सी इवन इन कॉर्पोरेट और एनी फील्ड, ज्यादा आगे वो लोग जाते हैं जिनका इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है rather than the skills, because skills are learnable but emotional quotient needs a lot of practice. So one एग्जैक्टली। is that. And then, of course, spirituality does play a role. People undermine this, but it does play a huge role. So yeah, go on with that. But people undermine this, but you can see there are a lot of people who are heading towards spirituality in today's world. Yes. Okay, there are students of IIT, IIM who have entered ISKCON, who have become the saints of ISKCON temple. Yeah. Okay, they have learned everything. Students of IIT, IIM. Okay, means they say that जितने IIT के लोग गूगल में काम नहीं कर रहे होंगे उतने ISKCON temple में. Yeah. Okay, so yeah, so that spirituality plays a very wide role, I say, because again, means you are not bigger than any universal power or any spiritual power. ठीक है, तो आपको आपके आपका गोल अधूरा है अगर आप उसको स्पिरिचुअली उसका स्पिरिचुअल का साथ उसे नहीं दे रहे हो, तो आपका गोल अधूरा है। उसे अचीव करने में आपको तकलीफें आ सकती है इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब क्या करना? जस्ट बिलीव दैट देयर इज सम पावर दैट इज विथ मी विच इज प्रोटेक्टिंग मी, ये स्पिरिचुअल हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन आता है, आप सुबह उठकर भगवान की पूजा वगैरह कर सकते हो, वो भी स्पिरिचुअलिटी में आता है। नो वरीज, यू कैन बिलीव दैट देयर इज सम पावर व्हिच इज गाइडिंग मी, एंड आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, बिलीव करो कि कुछ तो है जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे मुझे उसका साथ है, उस पावर का साथ है तो मैं कुछ गलत कर दूं। ठीक है, सो दैट डजंट मीन दैट। सो Intention is एनी very. इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो बड़े बड़े काम हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा भी है। इंटेंशन से याद आया कि ऐसे भी लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म में गलत करने के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छा करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये दिखाते हैं कि मेरा इंटेंशन अच्छा है भाई, मैं तुझे मदद कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन, मैं अच्छे इंटेंशन से मदद कर रहा हूँ ना, बट लॉन्ग टर्म में इनका ये क्या है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी और अगर किसी कारण से ये मुझे मदद ना कर पाए तो मैं इसे बोल के दिखाऊंगा, देख मैंने तुझे मदद की थी उस वक्त और आज तू मुंह फेर रहा है मुझसे। सो दैट इंटेंशन, उस इंटेंशन से लोग ये करते हैं, या फिर किसी को मदद कर देंगे और फिर ये बोलेंगे कि यू शुड बी थैंकफुल टू मी दैट मैंने मदद की। तो ये कुछ ऐसे इंटेंशन होते हैं लोगों के। सो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, इट्स नॉट अबाउट हु इज हेल्पिंग यू, विद व्हाट इंटेंशन दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो और भी कुछ चीजें हैं, अगेन टेंजेंट्स, कि यू हैव स्ट्राइक पॉइंट क्लैरिटी, और इन टुडे जनरेशन दैट इज अ ह्यूज सुपर पावर। लाइक यू से हम्बलनेस इज योर सुपर पावर, बट सो इज योर क्लैरिटी, बिकॉज इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सबको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता होता है दैट व्हाट दे वांट टू डू, but this information overload, all the distractions, they just keep grabbing you away from your ultimate goal, which again is a part of spirituality, your ultimate purpose. So one, how do you attain the certain level of clarity that would direct you towards the right direction? One, then I would come to the second. Yeah, so basically what I do is I do some sort of meditation practice in my whole day। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ के ध्यान में बैठूंगा, उतना ही मेडिटेशन नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ, बट आई विल मेक श्योर दैट आई डू सम मेडिटेटिव प्रैक्टिस इन अ डे। ठीक है, इससे होता क्या है, मेडिटेशन से आपको जो थॉट्स का ये चल रहा है ना, तो वो कम हो जाता है, आपके Right. थॉट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सो यू कैन पिक अप द राइट थॉट एट द राइट टाइम एंड यू कैन डू द राइट थिंग। सो इट्स लाइक कि मैं सुबह हो सकता है उठकर 5-10 मिनट में ध्यान में बैठूं, मेडिटेशन करूं, आई विल जस्ट फोकस ऑन माय ब्रेथ और आई विल चैंट अ मंत्र। ठीक है, दूसरी चीज, जब मैं जिम में होता हूँ, आई डू नॉट स्पीक अ वर्ड विथ एनीवन, आई डू नॉट स्पीक अ वर्ड विथ एनीवन। मैं जाता हूँ, 1 घंटे में मेरा वर्कआउट बराबर खत्म हो जाता है। आई डू नॉट टच मोबाइल, आई डू नॉट स्पीक विथ एनीवन। जो गाने चल रहे हैं उनकी तरफ भी मेरा ध्यान नहीं रहता, मेरे माइंड में बस ये रहता है कि जो मसल में हिट कर रहा हूँ
उस मसल को मैं स्टार्टिंग से लेके एंड के सेट तक उसका मेरा पूरा कंसंट्रेशन उस मसल पे हो, इसे माइंड मसल कनेक्शन भी बोलते हैं। सो आई ऑटोमेटिकली गो इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट कि मैं एक चीज पे 100% फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये अलग अलग तरीकों से कैसे हो सकता है। आप अगर खाना खा रहे हो, जस्ट फील दैट फूड इज गोइंग इनटू योर माउथ, इट्स एंटरिंग इनटू योर स्टमक, 100% फोकस। अगर आप नहा रहे हो, फील दैट वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम योर बॉडी, फील इट, ठीक है। तो अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो, तो पूरी तरह से घुल जाओ उस म्यूजिक में, मतलब उस म्यूजिक के अलावा आपके दिमाग में कुछ होना ही नहीं चाहिए। सो ये अलग अलग चीजें हैं जिससे आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो, एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन few thoughts and you can just eliminate the thoughts which are not useful for you, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गड़बड़ नहीं होती है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रेस भरी सिचुएशन हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि इसको काम रखना है, ठीक है। अगर इसको काम रखा तो फिर एक कोई राइट थॉट या फिर राइट आइडिया आ जाएगा जिससे आप उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। अगर आप सोचते रह गए, अगर आप घबरा गए कि यार मैं कैसे करूं, क्या करूं क्या करूं, अब ऐसा हो गया, क्या करूं क्या करूं, इस क्या करूं क्या करूं क्या करूं में ना आप भूल जाते हो कि आपको सोल्यूशन ढूंढना है, और वो सोल्यूशन यहाँ होता है पर वो आपको दिखता नहीं है क्योंकि आप बाहर से पैनिक हो ना बहुत। तो काम रहना है और इसको ये करना है, तो इस तरह से आप चैनलाइज कर सकते हो हर थॉट को। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट अ लॉट। Perfect. Brings me to the second one, your habits. Because I know to become any kind of an influential personality, what makes you are your habits. So your key habits that you follow through the day, maybe your routine or any particular things that you consciously follow कि और कुछ मैं करूँ ना करूँ, ये 3 से 4 चीजें हैं जो मैं definitely करूँगा, which is making me the person who I am and the person I want to be. So what are those? तो रूटीन तो नहीं है मेरा ऑनेस्टली, क्योंकि इट्स लाइक कि फ्रीलांसिंग में जब कोई जो चीज करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है, तो रूटीन तो नहीं है फिलहाल मेरा। तो वन हैबिट इज डेफिनेटली वर्कआउट, ठीक है। मेरे पूरे दिन का ये वर्कआउट से पूरा एनर्जी और ये सारा ये हो जाता है। सेकेंड हैबिट इज आई शो अप एवरी डे, मतलब मुझे अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे लोगों तक कुछ लर्निंग पहुंचानी है तो मुझे खुद सीखना पड़ेगा। सो आई शो अप एवरी डे फॉर लर्निंग एवरी डे, ठीक है। चाहे मेरा मूड हो ना हो, मैं एक पन्ना पढ़ लूंगा एटलीस्ट किसी बुक का। आई जस्ट शो अप, शोइंग अप इज इंपॉर्टेंट ताकि आपकी बॉडी को हैबिट लग जाए। तीसरी हैबिट है ईटिंग हैबिट्स। ईटिंग हैबिट्स इट्स लाइक कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, व्हेनेवर आई ईट समथिंग स्पाइसी, दूसरे दिन मेरा पेट बिगड़ जाता है, ठीक है। तो फिर आई जनरली अवॉइड स्पाइसीनेस। तो स्पाइसीनेस कम होने के कारण क्या होता है कि अगर मतलब ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब पेट खराब होता है ना तब किसी भी चीज में मन नहीं लगता। True. बिल्कुल नहीं। तो फिर आई टेक केयर ऑफ दैट कि कुछ भी हो जाए पेट खराब नहीं होना चाहिए, इससे मैं सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट ठीक से कर पाऊंगा, ठीक है। वन मोर हैबिट इज सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन आई विल डू, सम सॉर्ट ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया, सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन। सो ये, हाँ, ये 3-4 हैबिट्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। और एक और चीज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग द हैबिट्स, इट्स अबाउट ब्रेकिंग द हैबिट्स एज वेल, ठीक है। सो ब्रेकिंग द बैड हैबिट्स, bad habits, bad means the habits which are not contributing in achieving your goal, that are bad habits. Yes, that's not working. That's a big one actually. और ये ज्यादा टफ होता है rather than building the habits. क्योंकि आपकी जो बनी है हैबिट्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो बचपन से बने हुए हैं। उसको ब्रेक करना इज इवन टफर देन मेकिंग न्यू हैबिट्स। सो हाउ डू यू? तो इसके it's like I build a system. See, if you want to master a habit, you have to build systems. Like if you have to master a habit of, for example, you have to start working out. Okay, so what is the system for working out? You will get up early in the morning. Okay, you will set an alarm. You will get up in the morning. You will fill your water bottle. Okay, you will carry a napkin. You will take your shoes. Okay, if gym is just nearby, you will go by walking. Okay, you will go, you will do warm up and all, you will gym workout, after gym workout you will do a post workout meal. Okay, so this is a system. Okay, so you have to build a system. If you have to read a book or you have to gain knowledge, what you have to do, read at least one page every day. You are building a system, one page every day. Okay, if the book is of 365 pages, you will complete one book in a year. Okay, now what you can do, you can read one book in 1 month. So it's just about building the system. Once you build the system,
your body will adapt it and you will go on doing that thing. Okay, same goes with the unlearning process. You have to build a system to unlearn a habit. छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, और ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली होना ही चाहिए, एक आध दिन अगर ये हो गया, ड्रॉप हो गया, एक आध दिन में नहीं कर पाया तो छोड़ देना है, ऐसा नहीं है. इफ यू गेट ड्रॉप इफ वन डे, तो आपको वापस ट्रैक पे आना है, आपको वापस ट्रैक पे आना है. मतलब आज आपने अगर जिम मिस कर दिया तो कल आपको फिर से जिम जाना है, आपको ट्रैक पे वापस आना है. वरना क्या होगा, इफ यू आर मिसिंग द जिम, एंड दिस गोज विद ऑल द हैबिट्स. ओके, ठीक है, तो आप जिम मिस कर रहे हो तो मिसिंग द जिम विल बिकम योर न्यू हैबिट. उसको फिर से अनलर्न करने के लिए बहुत मुश्किल जाएगी. यस, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई भी चीज अगर आप हैबिट फॉर्म करें तो 3 बार या 3 दिन से ज्यादा वो मिस नहीं होना चाहिए. Like even if you have missed it 2 days or something, but third day show up again. Third day re-begin the cycle of building up that value or that habit. Yeah. This comes to one more thing, that that person should be also that much dedicated that I'll follow it throughout, because I know a story where the boss asks a person that not boss, I think it was an event where a guide asks a person that you have to leave the cigarette. Okay, so it is told that it takes 90 days to build a habit. Okay, 90 days to build a habit. So that person told to him, you have to not touch the cigarette for the next 90 days. That person re-questions the guide that can I do it on 91st day? तो फायदा क्या ना, उससे 90 दिन में फॉलो किया हैबिट ब्रेक करने के लिए, और वो पूछ रहा है कि मैं 91वें दिन क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ. ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग एंड ऑल, इट्स अबाउट योर हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव ऑन योर सेंसेस. कमिंग टू सेल्फ कंट्रोल, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज टुडेज जनरेशन लैक्स इट. इट जस्ट लैक्स hugely, and not everything is their fault also, क्योंकि the kind of environment that they are born into, उनके पास सब कुछ accessible इतना ज्यादा है कि ये होना लाजमी है, ये होना ही था. But to especially the Gen Zs out there who I am sure are dealing with the issues of self control, एक तो mobile addiction भी बहुत बड़ा problem है, and then procrastination. So mobile addiction, lack of self control और procrastination, ये I think उनके 3 biggest issues में से होंगे ही होंगे. Tell me in the comments if I'm right or wrong, because I know I am. So इनके लिए what would you suggest to the Gen Zs specifically? Gen Zs के बारे में मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, I have taken sessions of youngsters who are Gen Zs. Okay, so I have observed that Gen Zs are weak. Yeah, they are weak. Okay, then they are not capable of handling tough situations. Okay, they are uncomfortable with the uncomfortable. Okay, then also I can say that they are irresponsible, and they can be easily manipulated. Easily manipulated. कोई भी उनको पागल बना सकता है. ठीक है, because they are not self aware. ठीक है, right. तो जैसे कि सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सोशल मीडिया एक तो हुआ ये है कि सोशल मीडिया ने एक इल्यूजन क्रिएट किया है परफेक्शनिज्म का. ठीक है, जेन जी जो सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करती है, वीडियोस देखती है, तो उनको ये लगता है कि उन लोगों की लाइफ जो वीडियोस में दिख रहे हैं उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है यार, और हमारी जिंदगी झंड हो चुकी है, तो हम क्या करें. मतलब फिर वो वहां पे डीमोटिवेट हो जाते हैं. बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ उनकी अच्छी साइड दिखाते हैं. शो देयर हैप्पी फेसेस ऑन सोशल मीडिया, दैट्स नॉट देयर होल लाइफ. सो सोशल मीडिया को इतना सीरियसली आप डायरेक्टली अपने लाइफ से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. और मैं तो बोलता हूँ सोशल मीडिया सिर्फ 3 चीजों के लिए इस्तेमाल करो. एक, या तो सोशल मीडिया की वजह से आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रही है, तो या तो आप किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, और 3, या तो आप उससे पैसा कमा रहे हो. अगर ये 3 चीजें आप नहीं कर रहे हो तो सोशल मीडिया यूज मत करो, कोई फायदा ही नहीं है. मतलब वो आपकी जिंदगी उल्टा बर्बाद कर देगा. इफ इट्स अ boon, इट्स अ कर्स, इट्स हाउ डू यू यूज इट. तो हाँ, सोशल बारे में ये है. एंड आई टेल यू दैट कि आजकल के जो बच्चे हैं जेन जी, सो दे आर, मतलब एक तो हुआ क्या है कि बच्चों को ना स्कूल्स में मारना पीटना बंद करवा दिया है. ठीक है,
केस हो जाती है टीचर पे मारपीट खाने से, और हम बड़े हुए मारपीट का मतलब मैंने तो बहुत मार खाई है, मैं क्लास के बाहर भी बहुत ये हुआ हूँ, बट अब पता चलता है कि यार वो उस वक्त सही था, क्योंकि आज जो मैं बना हूँ वो उसकी वजह से हूँ, क्योंकि कुछ चीजों का रियलाइजेशन मुझे वहां पे ये किया गया था। और आजकल के बच्चे ना, एक तो सिर्फ अगर नहीं है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है ये वो सोच नहीं पाते, क्या करना सही है क्या करना गलत है, किसका आउटकम क्या होगा हम्म, ये वो नहीं सोच, बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर देते हैं। आई गिव एन एग्जांपल। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला, मतलब समवन जो मेरे मतलब पहचान में है, तो उनका बेटा है, ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट, आई थिंक ही इज इन 11th और 12th। तो उसने आईपीएल में गैम्बलिंग किया, आईपीएल में, एंड ही लॉस्ट 6 लाख रुपीज इन इट। 6 lakhs. 6 लाख। और ये इन्फ्लुएंस हुआ था दोस्तों से, दोस्त बोले चल गैम्बलिंग करते हैं, 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद आज उसके घर वाले भरपाई कर रहे हैं उस नुकसान की, ठीक है। और अगर घर वालों ने उसे कुछ बोला भी, तो वो घर वालों को ही उल्टा धमकी देता है कि अगर आपने मुझे इसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। हम्म, तो आज की, मैंने बोला ना, आज की जनरेशन वीक है, सेल्फ अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको पता ही नहीं है। और जब ऐसा होता है ना, तो पेरेंट्स भी क्या सोचते हैं, छोड़ो यार कहीं ये कुछ सच में कुछ कर ना ले, हम भी इसको बोलते नहीं है। इट इज तो क्या एक्चुअली हो वेरी जाता है, टफ फॉर पेरेंट्स, बहुत ही वॉलेटाइल किस्म के क्रिएचर्स है। हाँ, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती होती है ना इन चीज में, या मतलब जो परवरिश हुई है, इफ पेरेंट्स वुड नॉट गेन द ट्रस्ट ऑफ द चाइल्ड, हाउ वुड द चाइल्ड विल फाइंड समवन एल्स टू शेयर द थिंग्स ना, और डू द थिंग्स विद, इससे और से इन्फ्लुएंस होगा। आप खुद इन्फ्लुएंसर्स बनो अपने बच्चों की, इतना ट्रस्ट तो उनमें दिलाओ कि यार कुछ भी करने से पहले हमसे पूछे कि ये करना सही है या गलत है, हम आपको अच्छे ही गाइड करेंगे। या तो ये कॉन्फिडेंस बच्चों को देना चाहिए, मतलब आई थिंक सो। और और क्या जेंजी के बारे में, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, a huge अरे part. प्रोक्रेस्टिनेशन के देखो दो पहलू है, दो पहलू। मैं आपको बताता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन इज गुड ऑल्सो एज वेल एज बैड ऑल्सो, ठीक है। पहले बैड की बात करते हैं, गुड की बात बाद में करेंगे। बैड कैसे है, अगर कोई बंदा किसी काम को स्टार्ट करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज बैड, ठीक है। मतलब अगर आप मतलब इस चीज का वेट करते रहो कि मैं पहले इस चीज में बेस्ट बन जाऊं और फिर मैं इस चीज को करना शुरू कर दूंगा, आप जिंदगी में कभी वो चीज शुरू नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हर बार आपको ये लगा था कि ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग द थिंग एंड गेटिंग बेटर इवेंचुअली, ठीक है। तो इसमें अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन करना है तो डेफिनेटली वो गलत है। स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, अलग बनाएंगे, बनाने दो। मतलब आज जितने लोग बड़े हुए उनका भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी मजाक उड़ाया गया था, तो ये समझना। और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे, और आज वही लोग जिन्होंने मजाक उड़ाई वो बोल रहे हैं कि यार ये मेरे पहचान का है, ठीक है। सो लोग तो बोलते रहेंगे, तो उन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन, जब आप कोई चीज शुरू करते हो, ठीक है, इसमें भी दो पहलू है, ठीक है। पहला पहलू कि अगर वो चीज क्रिएटिव नहीं है और कंप्लीट होने में कम टाइम ले रही है, फिर भी आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आपको अगर वो चीज हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो कर देनी चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए उस चीज को, ठीक है। ये पहला पहलू। दूसरा पहलू, कोई भी काम स्टार्ट करने के बाद अगर वो काम क्रिएटिव है, ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन उसमें अच्छा होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको वो फेमस पेंटिंग पता है मोनालिसा की, या मोनालिसा की फेमस पेंटिंग, तो लियोनार्डो डा विंची ने उस पेंटिंग को पूरा करने के लिए 16 साल लिए, ठीक है। 16 साल क्यों, क्योंकि 16वें साल की वो जो 16 साल थे तब वो गुजर गए, ठीक है, लियोनार्डो डा विंची वाज नो मोर। फिर भी अगर लियोनार्डो डा विंची उसके बाद भी जिंदा होते, फिर भी वो तस्वीर उनके लिए कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वन गो में वो पेंटिंग नहीं बनाई, कुछ साल उस पर वो काम करते थे, कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए छोड़ देते थे, फिर से उस पर काम करते थे, तो वो पेंटिंग उनके लिए कभी कंप्लीट थी नहीं। बट आज देखो, उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया ना इस चीज को, क्यों, क्योंकि वो बेहतर बना सके उस चीज को, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से नाउ दे आर रजिस्टर्ड इनटू हिस्ट्री, दे आर वेल नोन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीजों में अच्छा भी होता है, तो ऐसा नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कुछ कर रहे हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तो मैं इवन वन मोर थिंग की
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में प्रोक्रेस्टिनेशन करना भी कभी कभी अच्छा होता है। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनका सॉल्यूशन हम ढूंढते 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 मिलता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम उसको इतना फोकस थे कि सॉल्यूशन ढूंढने में ही लगे। क्या पता अगर आपने उस प्रॉब्लम को कुछ देर के लिए वहीं पे छोड़ दिया और आपने डेली कोर्सेस में लग गए, तो क्या पता डेली कोर्स में कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। Yeah, that happens. या सो प्रोक्रेस्टिनेशन इज, अलग अलग केसेस में, कुछ केसेस में बुरा है, कुछ केसेस में अच्छा है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, और मैं तो बोलता हूँ कि 2 मिनट रूल फॉलो करना चाहिए लोगों ने। 2 मिनट रूल मतलब अगर कोई चीज 2 मिनट से कम ले रही है कंप्लीट होने में, तो उसे तभी कर दो। तभी तो 2 मिनट रूल फॉलो करो। इट्स लाइक कि आप शाम को घर पे आए, आपने मतलब हड़बड़ी में चाबी कहीं पे रख दी गाड़ी की, ठीक है, और दूसरे दिन 15-20 मिनट उसमें वेस्ट कर दिए, सुबह चाबी नहीं मिल रही गाड़ी, तो ऑफिस को जाने के लिए लेट हो रहा है, कितना टाइम लगा रहता उसकी को उसकी जगह पे रखने के लिए? 2 मिनट से भी कम लगा रहता। ठीक है, तो ऐसे काम 2 मिनट, जो 2 मिनट से कम है वो उसी वक्त कर दो, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी आपकी। करेक्ट। एक और ये चीज होती है प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ कि यू यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द थिंग्स, क्या तो जिससे आपको बहुत डर लगता है दैट यू विल नॉट बी गुड इन इट, या फिर आपको लगता है कि यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट। सो दोनों ही सिनेरियो में आपको पता तभी चलेगा जब आप उसको एक्चुअली करोगे। सो हाँ बिल्कुल। you need to be sometimes like chuck it, I will do it, what the heck, let's do it anyway. So this यस यस। is the mantra that I have been following a lot lately कि what the heck, let's just do it, फिर देखेंगे। वो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, बट इफ वी थिंक इट इन अ वे दैट व्हाट इफ इट डज, It does. अगर वर्कआउट हो गया तो क्या? तो दोनों सिचुएशंस है ना, तो लोग ज्यादा फोकस उस पे करते हैं कि व्हाट इफ इट डोंट वर्क आउट, तो दे शुड फोकस ऑन व्हाट इफ इट डज वर्क आउट, तो करके देखना है भाई। Awesome. ये सेगमेंट आई थिंक स्पेशली जेंजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स है that they actually need to hear, you know, like because they're not getting the tough love that's required. बहुत ही ज्यादा comfortable life में है, they are in their own bubble, and then when something happens, some situation occurs and they are pulled or pushed कि ऐसे नहीं बेटा, it does not work like this, you have to understand this. तो उनको सडनली लगता है कि ये तो दुश्मन हो गया, क्योंकि वो इनिशियल से उनका पैटर्न नहीं बना। हाँ, टॉलरेट नहीं कर पाती। हाँ, टॉलरेंस ही नहीं है, हैबिट ही नहीं है कि वो समझे खुद से अलग हटके कि ये जो सामने वाला बोल रहा है इट कैन बी राइट ऑल्सो। सब आपके एकदम पीछे नहीं पड़े। सो दिस इज द टफ थिंग, पेरेंटिंग इज गोना बी टफ फॉर आवर जनरेशन। नहीं, मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच द पेरेंट्स गिव्स टाइम टू देयर चाइल्ड ना। तो आजकल के पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है बच्चों को टाइम देने के लिए, तो कैसे परवरिश होगी? तो फिर उस परवरिश के चक्कर में फिर बच्चे किसी और का सुन लेते हैं, क्या पता वो अच्छा गाइड कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं बच्चे को, तो फिर वो सोच लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, जिसने मुझे सपोर्ट किया है मैं उसकी क्यों ना सुनूं। एग्जैक्टली। तो ऐसा होता है, और फिर अगर कभी फिर पेरेंट्स के ऊपर का ट्रस्ट भी उड़ जाता है। फिर जब बच्चे पेरेंट्स कुछ बच्चों को बोलते हैं और भले ही वो अच्छा भी हो, बट वो ट्रस्ट नहीं है, इसलिए उनको लगेगा, बच्चों को क्या लगेगा, नहीं नहीं ये मुझे फिर से मिसगाइड कर रहे हैं। तो फिर तो फिर अगेन यू जस्ट सेड दिस थिंग कि उनके पेरेंट्स ने ऐसे, तो ये बहुत सारा बैगेज भी चल रहा है। तो पेरेंटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आई थिंक। सो वन थिंग इज ऑलवेज इन माय माइंड कि मैं सबको, इवन द माय फ्रेंड्स हु आर गेटिंग मैरिड, हु आर थिंकिंग अबाउट हैविंग अ बेबी एंड स्टफ, मैं यही बोलती हूँ कि हैव अ बेबी व्हेन यू हैव सॉर्टेड आउट योर बैगेजेस। इसीलिए आई हैव टर्न टू so much into healing and stuff, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। Unless you have dealt with your baggage and issues, you will pass it on to your kids. So I always suggest कि एक तो physically, mentally सब कुछ ठीक है, but emotionally you have to be very ready as a parent. And कहीं ना कहीं it also works subconsciously. That is why you see like so many miscarriages happening. कि एक तो emotional, mental, physical stress नहीं handle कर पाते हैं, which is why they are not subconsciously ready to be a parent, but they are still trying to be. तो ये भी एक फैक्टर होता है। It's a lot of things which we need to think upon, and most people are not even aware of it even now. All right, so now let's dive deeper into high performance and productivity, because I'm very curious. You have handled a lot of clients in a lot of ways. You have done life coaching, you have given mindset, and psychologically also you're very like equipped. You have learned and studied a lot of it. So firstly, give me some
aspects of psychology, like ये कैसे होता है. Like you are 25 right now, if I'm not wrong. So you have started 26. doing, yeah, almost 26. So you started right after grade 10 for fitness and nutrition. Then you have learned so many topics so vividly, and you have implemented each one of them. So psychology is one of them, and now I'm also very inclined towards studying and understanding this, since I have been into personal development a lot lately. So my podcast भी बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, like the neuroscientific ones and the psychological ones, they are my favorite. बहुत मजा आता है सुनने में. So I want to know your views कि पहले तो ये कैसे हुआ, and how do you apply all these things with your clients? एक बेसिक चीज है दैट आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. ठीक है, आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. और जो क्लाइंट्स है, ठीक है, whoever, एक तो पहली बात तो आज तक मेरे पास जो भी लोग आए हैं काउंसलिंग के लिए, वो बस इस हिसाब से आए हैं कि उनकी करंट जो प्रॉब्लम है उसका उनको कुछ सोल्यूशन मिल जाए. ऐसे ऐसे ये करने के लिए आते हैं. सो मेजोरिटी ऑफ टाइम हाउ डू आई अप्रोच दैट थिंग इज, मैं उनको सिंपैथी तो देता नहीं हूँ कि यार आपके साथ बुरा हुआ ऐसा वैसा वैसा. मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और मैं उनको पहले क्लियर कर देता हूँ. इफ आई टॉक प्रैक्टिकली, वुड यू बी एबल टू हैंडल इट? इफ दे से यस, आई गो फुल ऑन इन प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं उनको ये नहीं बताता कि उनको क्या करना चाहिए. मैं उनको ये बताता हूँ कि आपकी सिचुएशन में मैं होता तो मैं क्या करता. ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि उन पे क्या सिचुएशन है, कैसे कोई कौन सी चीज उन पे क्या इन्फ्लुएंस कर रही है. सो आई व्हाट आई डू इज आई टेल देम इफ आई वुड हैव बीन इन योर सिचुएशन व्हाट आई वुड हैव डन. ओके, एंड हाउ आई वुड हैव अप्रोच्ड डिफरेंट थिंग्स इनटू डिफरेंट वेज इन दैट लाइफ स्टेज. जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. वन ऑफ माय क्लाइंट हैज कॉल्ड मी एंड ही सेड दैट कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है. ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ काफी चीजों की वजह से. और मैं बस ये चाहती हूँ कि शी इज अ डॉक्टर. ओके, सो शी वांट्स, उसमें पढ़ाई तो बहुत ज्यादा होती है. डॉक्टर वो हो चुकी है बट पढ़ाई ज्यादा होती है. सो उसने मुझे बताया कि मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं इस चीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं. तो आई टोल्ड हर कि अगर तेरी जगह पे मैं होता तो मैं क्या करता. What I would have done is, एक मुश्किल काम जो मुझे करना है, पढ़ाई करना मुश्किल काम होता है, ठीक है, मेरे लिए. ठीक है. तो जो मुश्किल काम है, उस मुश्किल काम को करने का मोटिवेशन कहां से आएगा. मैं उस मुश्किल काम का आउटकम या फिर एज अ रिजल्ट या फिर एज अ गिफ्ट वो चीज रखूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. तो मैं उस काम को कंप्लीट कर पाऊंगा. ठीक है, जैसे मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे पसंद है आइसक्रीम खाना, ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आइसक्रीम खाने जाऊंगा. ठीक है, सो दैट इज द आउटकम. अगर मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया तो मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा. तो कुछ एक आउटकम रखना है कि जो आपको मोटिवेशन दे कि ये काम करने के लिए. तो ये जनरली मैं मतलब आप हर चीज अलग अलग चीजें है. सो आई जनरली गो विद द एम्पैथी थिंग कि मैं खुद को उनके जूतों में रख के देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं इस सिचुएशन में रहूँ तो. सो आई जनरली अप्रोच इन दैट वे. और मेजोरिटी ऑफ लोगों को वो फायदेमंद भी होता है. मतलब मुझे फीडबैक्स भी आते हैं, आपने कहा, मैंने ये अप्लाई करके देखा एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. I can concentrate, I can focus, I have reduced many of my distractions and all. तो हाँ, ये चीजें सारी होती है. साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जनरली आपके दिमाग का खेल है. मतलब कि सामने वाला क्या सोच रहा है वगैरह वगैरह. साइकोलॉजी में एक और चीज आती है फेस रीडिंग करना. तो मतलब आपके फेस के ऊपर से आपके ट्रेड्स बताए जाते हैं कि आप कैसे हो, इमोशनली कैसे हो वगैरह, कैसे हो, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारा समझ में आता है. सो साइकोलॉजी इज अ गुड थिंग सामने वाले को समझने के लिए कि मतलब हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं सामने वाले को कि ये बंदा भरोसे के लायक है नहीं है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ मच ही इज हेल्पफुल फॉर मी, हाउ मच ही इज हार्मफुल फॉर मी. तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी में से पता चल जाती है. Certain examples of these traits. ओके, तो इट्स लाइक कि जैसे मान लो कि कोई बंदा है और मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो जब वो बात करता है तो वो इस हिसाब में करता है कि
यार मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है, तो अगर हम दोनों ने ये साथ किया तो हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। एंड व्हेन आई आस्क हिम, आज तक आपने क्या किया? उसमें से कुछ भी नहीं किया होगा उसने, ठीक है। तो उसमें कि वो सिर्फ बातें कर रहा है और अप्लाई तो आज तक उसने कुछ नहीं किया, ना ही स्टार्ट किया है, तो भरोसा कैसा रखा जाए ना। सो ये साइकोलॉजी उसके पीछे ये है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर हम साथ में कर ले तो हो सकता है। जनरली होता क्या है लोगों का, लोग इस चीज करते वक्त दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं या फिर अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो एक गलत अप्रोच हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मतलब आपने भी देखा होगा कि किसी का मजाक उड़ा देंगे ग्रुप में सबके सामने, ठीक है, वो सिर्फ इस चीज के लिए कि उनको लोगों का अटेंशन मिल जाए, अटेंशन सीकर्स। Yeah, तो मतलब ये डिफर करता है। अगर कोई बहुत शांत है, ठीक है, कोई बहुत शांत है, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, ही और शी इज गोइंग थ्रू समथिंग which she is not she don't want to talk or she don't have someone to talk with, ऐसा। ये तो रिवर्स भी वो होता है कि some people who don't want people to know what's actually going on with them, so they do the reverse thing, they talk a lot or they laugh a lot. तो ये यस रिवर्स में भी चलता है। यस यस यस, मतलब एक किस्सा मेरे साथ हुआ था कि व्हेन आई वाज इनटू आईटी, सो आई आस्क्ड वन ऑफ द गर्ल, मतलब वो बहुत खुश रहती थी, नहीं क्या, मतलब जो चीज हंसने लायक नहीं थी वो उस चीज पे भी हंसती थी, हाँ, एग्जैक्टली, इट्स लाइक एन मतलब। और एस्केप मैकेनिज्म। हाँ, एस्केप मैकेनिज्म, एक्साइटमेंट, और बातें ऐसी करेगी कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है और खुद ही हंसेगी, कोई हंस नहीं रहा है दूसरा। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने पूछा तेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, तू बहुत सफर कर रही है ना? तो बोली तुझे कैसे पता? तो बोला अरे तेरे चेहरे पे दिख रहा है, तेरे चेहरे पे दिख रहा है, यू आर वेरी chaotic, तेरे माइंड में बहुत chaos है। और फिर उसने धीरे धीरे वो ओपन अप हुई एंड शी टोल्ड मी, देन आई लिटिल बिट गाइडेड हर, मतलब हम भी उतना ही गाइड कर सकते हैं जितना सामने वाला अलाउ कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन नॉट फोर्स समवन, या तो हम खुद जाके किसी को मदद नहीं कर सकते जब तक वो खुद ओपन अप नहीं हो रहा है हमारे पास, हम कोई मदद नहीं कर सकते। कोई भी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, उनको मतलब ऐसा ही होता है, धीरे धीरे ओपन कर हो हम कर सकते हैं उनको, बट अल्टीमेटली इट्स देयर चॉइस। सो या दैट्स सम बिट अबाउट साइकोलॉजी। So it also leads to a lot of problems in relationships. क्योंकि this I also do a lot whenever I see that something is going wrong, even when I'm teaching effective communication or public speaking or something else, and not doing the healing thing, core to the core. But I do recognize these patterns, and then when I ask again certain questions like this, then they open up like a book. Like मैम ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसकी वजह से ऐसा हो गया. So this is why I'm not able to do this. This is why I'm not able to focus on that. So eventually I found out that even in communication and public speaking, या जो भी career issues usually people are dealing with, they actually are related to some other emotional problems. चाहे वो health हो, Yeah. चाहे वो career हो, चाहे वो financial हो. Eventually everything is going back to their emotions. And all of their emotions are mostly centered around relationships, either with their Yeah. parents, with their partners, or with their friends, or with their bosses, colleagues. So the key problem right now are relationships, is what I've noticed from the patterns that I've been seeing around me. So do you agree with it, or do you remember any kind of such scenarios that have happened with you? Yeah, I agree with this. Totally agree with this. It's like if we talk about relationships now, so generally we'll start from the relationship of a boy and a girl with each other. Okay, we'll start with this and then we'll talk about other relations. Sure. So now, what happens is a boy and a girl. Okay, they are into a relationship. They like each other and all. What happens is at from a certain point of time, after a certain point of time, any one of them or both of them start taking granted to each other. Yeah. Okay, why this happens? Because they themselves don't know their self-worth. Okay, so taking for granted ruins most of the relationships. They think that however I behave, she will be with me or he will be with me, however I behave. They try to take control of their life. Okay, and those who give the control, they suffer. Those who don't give the control, but those who मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस रखते आना चाहिए कि सामने वाला ज्यादा हम पे हावी भी ना हो जाए और रिलेशन भी खराब ना हो जाए। सो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये इशू है। एक और चीज है ट्रस्ट, दूसरा आता है रिस्पेक्ट। पहले तो रिस्पेक्ट आता है भाई,
पहले रिस्पेक्ट आता है। मतलब आपका प्यार हो ना हो, आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी आपका प्यार टिकेगा। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है, फ्रीडम एक होना चाहिए, फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम मतलब ऐसा है कि अगर ट्रस्ट और फ्रीडम की बात करें, सो आई आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, नाउ इट्स ऑन यू हाउ मच यू कीप ऑफ इट, True. ठीक है। मैं आपको भरोसा कर रहा हूँ, पर आप ये आप पे कि आप मेरा भरोसा कितना संभाल के रख रहे हो, ठीक है। उसके बाद चीज आती है फ्रीडम की। मतलब आपको फ्रीडम तो दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्रीडम दिया है तो आप मेरा भरोसा तोड़ दो। Right. ओके, सो दिस ऑल गोज इन अ वे। और ये तो बॉय और गर्ल, मतलब हमने जनरल रिलेशनशिप्स की बात करी। और मैंने ऐसा देखा है कि कई रिलेशनशिप्स जनरेशन से खराब है। Yes, that जनरेशन happens. मतलब, हाँ, दादा दादी, उनके भाई बहन, उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट फिर बच्चों में आ जाता है। मतलब बचपन से बच्चों को बताया जाता है कि इनसे बात मत कर, ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे, ये वैसे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स वहां से शुरू हो जाते हैं और एंड की जनरेशन तक आ जाते हैं, जिनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। Yes, and it इसकी it वजह happens से even बहुत, genetically. कि मैंने बहुत बार देखा है that you repeat patterns like this again comes under law of attraction and stuff. But अगर आपने देखा है कि there are suppose for example if we say कि between the mother and the daughter there are some issues and then you see कि वो same pattern generation to generation में repeat होता रहता है. Even the divorce cases like if the parents are divorced that you have faced it all in your childhood. तो eventually like logic ये बनता है कि आपने उसको देख लिया, आपने सीख लिया, तो you will not repeat the same mistakes. But what actually happens is you end up repeating the same pattern. तो ये भी generational जो आता है वो genetically भी transfer होता है. यस यस, वो और उसके पीछे एक कारण क्या है कि मान लीजिए, मानो कि पहली जनरेशन के साथ कुछ हुआ, वही रिपीट दूसरी सेम सिचुएशन रिपीट, या फिर उससे मिलती जुलती सिचुएशन रिपीट दूसरे जनरेशन के साथ हुई। तो वो जनरेशन क्या सोचेगी, जब ऐसा उनके साथ हुआ था उन्होंने क्या किया, और अब आज उनकी लाइफ अच्छी है तो मैं भी वही करूंगी। दे वोंट फाइंड एनी अनदर वे टू सॉल्व इट, और टू क्या बोलते हैं उसको रिपेयर करने के लिए कोई दूसरा वे नहीं ढूंढेंगे, बट वो वही करेंगे जो उन्होंने किया था। तो ये गलत इन्फ्लुएंस आ जाता है ऐसे। सो एंड अगर मैं बात करना चाहूंगा, इफ आई टॉक अबाउट टू थिंग्स, लव एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। तो मैं बोलता हूं, अगर आपका लव है, अगर आप किसी के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है, सो यू आर नॉट सपोज टू एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम द अदर पर्सन। फिर तो वो सैक्रिफाइस रहा ही नहीं ना, फिर तो वो प्यार रहा ही नहीं ना, वो तो ट्रांजेक्शन हो गया। वो तो ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने तुझे इस टाइम पे, तेरे लिए इस टाइम पे सैक्रिफाइस किया था, अब तू मेरे लिए सैक्रिफाइस कर। क्यों? Right. तूने इसलिए सैक्रिफाइस किया ताकि वो तेरे लिए सैक्रिफाइस करे। और एक और So, चीज होती है वो जिसकी जताना. The people will make a lot of efforts for a person or anything, but वो साथ में जताते हुए भी चलेंगे कि see, I'm such a great partner, I'm such a great brother, I'm such a great sister, or a mother or a father, कि मैंने आपके लिए ये किया. तो जब आपने या एडमिटेड कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स की, बहुत, पर जब आपने जता दिया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती कि लाइक देन व्हाट इज इट फॉर. अगर आपको जताना ही है तो इट्स नॉट अनकंडीशनल, देन इट्स नॉट लव. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब मुझे लोगों ने बहुत मदद की है, ठीक है, बट इन रिटर्न ऐसा कभी मौका आया नहीं कि मैं उनको भी मदद करूं। बट मुझे मौका मिला उन लोगों को मदद करने का जिन्होंने आज तक मुझे मदद नहीं की है, एंड आई हैव हेल्प देम विद नो इंटेंशन इन रिटर्न, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मेरा नुकसान नहीं हो रहा, आपका आपको हेल्प हो रही है, मैं आपको हेल्प करूंगा, एज सिंपल एज दैट। Brilliant, brilliant. Okay, so now let's come to this culture. Okay, I had this question running in my mind. I did a full-fledged podcast on Dream with Neeraj, and it was unexpected. So I'm gonna throw the same ball at you about relationships. It was like what he asked me. Like I'm stating the exact same question. What women look for in a relationship or in an ideal partner, supposedly. क्योंकि ऐसा कुछ exist करता नहीं है, but supposedly. So now I'm curious to know the men perspective. Like what are men looking for? Because I have the female one and I have a lot of friends to talk about, and this is a generic topic that usually आजकल trend में भी सभी बात कर रहे हैं. So why not? So enlighten us. What are men looking for in a relationship or in an ideal partner? अच्छा, तो अब मैं पूरे मेन की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना बताऊंगा सिर्फ। हाँ, of course. ठीक It will be, है, yeah, ultimately it is your perspective. इससे कुछ एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ। अभी हुआ क्या, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चा अभी जॉब कर रहा है अच्छे से,
कमा रहा है, इसकी शादी करा दो, ठीक है, इसकी शादी करा दो। तो वो फिर वो बायोडेटा वगैरह बनाना, वो सारी चीजें होती है। मैंने भी किया, मैंने भी किया, मैंने भी किया। घर वालों ने बताया, मैंने किया। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, मैंने किया। मैंने उसमें ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस लिखी, मुझे मेरे रिलेटिव्स बोले भाई ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखे हो, कोई लड़की नहीं मिलेगी। मैं बोला अच्छा, तो फिर क्या रखना है? तो बोला सिर्फ इतना लिखना है, इतना लिखना है कि शी शुड बी गुड। तो मतलब मैं बोला ठीक है, मैंने सारी एक्सपेक्टेशंस निकाल दी। अच्छा, मैंने वो लिख के रखी, मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या है, ठीक है, मतलब व्हाट आई एक्सपेक्ट, ठीक है। तो हाँ, आई लुक फॉर एम्बिशन, वो लड़की एम्बिशियस होनी चाहिए, उसका करियर कोई भी हो बट शी शुड बी एम्बिशियस, ठीक है। उसके बाद शी शुड contribute in adding some value in other people's life in any form, on a bigger level or on a smaller level, doesn't matter, ठीक है। क्योंकि जब गिविंग समथिंग बैक का एटीट्यूड होता है ना, वो पर्सन हम्बल होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये सेल्फिश जो नहीं है, तो ऐसी लड़की। उसके बाद हाँ, मोर शी शुड बी मोर अ गिवर देन रिसीवर, she should be more a giver than receiver, and she should have good intentions of when doing any task। मैंने जैसे बोला कि कुछ लोग अच्छा काम तो करते पर इंटेंशंस गलत होते, तो उसके इंटेंशंस भी सही होने चाहिए कोई भी काम करनी हो तो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद she should be more ethical than emotional। ये तो टफ है दोस्त। more ethical, हाँ ये तो टफ है, मुझे पता है। तो यही हुआ ना, फिर मुझे घर वाले बोले ये ऐसा तो फिर कुआरा रह जाएगा जिंदगी भर ऐसे No, एक्सपेक्टेशंस but में। these तो criteria are pretty interesting. Yeah, tell me more. Go on. so it's like कि I have read somewhere that make a list of what you see in your partner and first Yeah. you be that list। Become that. Yeah. हाँ, तो वो मैंने थोड़ा फॉलो कर लिया, बट इट्स लाइक कि ठीक है, एक दो चीजें उसमें थोड़ी सी कम भी हो जाए तो भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे। तो हाँ, दिस इज माय टेक ऑन व्हाट मेन लुक। तो ये मेरा पूरे दुनिया से अलग हो सकता है, ओके। तो हर किसी का अलग, मेरा तो No, पूरे this दुनिया से अलग हो सकता actually is making sense because like मेरा जो मैं what do I say, call it a survey के हिसाब से अगर मैं बताऊं, so the typical intellectual and balanced men, they do look for similar things। so हाँ, अगर आपका क्राइटेरिया ही खराब मैन या खराब विमेन की तरफ है तो फिर of course it's gonna be totally disbalanced, but yeah, ideally these are pretty good criteria, I would say। है। दिस इज द रीजन आई हैव नॉट बीन इनटू एनी रिलेशनशिप येट। हाँ of course ये पर तो मुझे होता ही है कि then yeah, no, there are issues if your standards are correct and you are not like, see, दो चीजें होती है, even I get the same thing, like whole biodata thing, I have been there, done that, देख लिया हमने सब चीजें करके। but the thing is when you have the right expectations, जब आप actually clear हो about what you want, it becomes more difficult क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए और इस चीज में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। देन पेरेंट्स को आता है कि बेटा कॉम्प्रोमाइज सब जगह करना होता है। देन व्हाट माय आंसर टू दैट इज, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, आपको एडजस्ट करना, एंड देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, इफ यू आर और एडजस्टिंग वो विद द सिचुएशन एंड वो पर्सन, एडजस्टमेंट ऐसी हो जो आप बेयर कर सको। हाँ एग्जैक्टली, लाइक इट इज हाँ, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अ कैलकुलेशन और अ बैलेंस कि यू विल हैव टू एडजस्ट। एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज अ गिवन, क्योंकि अदरवाइज लाइफ वोंट वर्क। बट जहां पे कॉम्प्रोमाइज की बात आ जाती है ना, देन अगेन इट वोंट वर्क। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में या आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे। सो इट्स rather या better to wait and work on yourself than jumping into situation कि चलो ये सब तो नहीं मिलने वाला, जो मिल रहा है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। No, adjust, yeah, fine, you can adjust with any, in fact it works in every scenario, हर चीज में, जॉब के लिए या हो या इट्स योर रिलेशनशिप या करियर है, एडजस्ट जहां तक आप कर सको, आप विलिंगली, और ये नहीं कि थोप थोप के कर रहे हैं। इफ यू आर विलिंगली रेडी टू एडजस्ट इनटू थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल, सिनेरियोज, करियर, एवरीथिंग, देन इट विल इवेंचुअली वर्क आउट फॉर यू। पर अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, चाहे वो करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, इवेंचुअली तो टूटेगा, चाहे कोई भी सिनेरियो, कोई भी कैटेगरी ऑफ लाइफ। सो दिस डज जी। हैपन। Hey, wow, we are going deep into this. I like deep conversations। हाँ, I'm loving it, मुझे बड़ा मजा आ रहा है।
Okay, so now again comes another thing जो actually a taboo topic है और अभी तक I don't think हमने cover भी किया है in the podcast, but it's regarding people's addiction to porn, and again जो बहुत ही trending चलता है for men, because like I said I want this to be a men centric podcast ताकि उनको सारी चीजों का मिले. So what are your views on porn addiction and nofap? क्योंकि I have no idea क्या चल रहा है आजकल. Yeah. हाँ, ओके. तो पॉर्न एडिक्शन, अगेन इफ यू कम टू जेन जी, हमारी जनरेशन भी होता था, में भी होता था, ठीक है, पॉर्न एडिक्शन. और अभी जेन जी की बात करें तो जेन जीज में भी पॉर्न एडिक्शन है. इट्स जस्ट कि होता क्या है कि आप जो पॉर्न में जो दिखाया जाता है ना, एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं होता. True. Okay, you cannot look it as a learning. Okay, people can look it as an entertainment, but you cannot learn anything from that, because it's not like, it's not in actually, it doesn't happen like that. It's not that much insane, and it's not that much. It's a very gentle process in reality. Okay, so if we read the book Kama Sutra, okay, so it has 8 sections of it, and just one section talks about sex. The other 8 Yes. sections talk about Very how much do you so. approach, how do you, yeah. So it's not, porn does not teach you anything. Porn actually ruins your mind. Yes. Okay, True. so it ruins your mind, and I would suggest that instead of watching porn, you take sex education. Yes. Okay, and now in today's world on YouTube, many people are giving sex education. Okay, I could suggest Seema Anand. Then there is one more, Dr. Q Trust. Dr. Cuterus, Neha, Dr. Neha, some Dr. Neha also there is one. Then Lisa Mangaldas. These people are means genuinely teaching sex education to the people on YouTube on an open platform. So the youth should go and watch it for the perspective of a knowledge. Okay, और देखने से कुछ नहीं होता भाई, आपका ये खराब हो जाता है. कुछ Exactly. नहीं होता. It will distract you from your studies, it will distract you from your relationships, it will distract you from your goal. Everything will be distracted. Everything will be distracted. ठीक है, ये हो गई पॉन की बात. नो फैप जिसको हम वी कैन आल्सो कॉल एज सेलिबसी, ब्रह्मचर्य और सीमेन रिटेंशन. ठीक है, ये सारी चीजें एक ही है. ठीक है, तो जनरली मेंस में सीमेन जिसको वीर्य कहा जाता है, it carries a lot of power. Means in Ayurveda also it is told that if you retain your semen, okay, semen retention, that means if you do not masturbate and if you do not ejaculate your semen out of your body what it does, it absorbs it, it absorbs the semen, and that energy is used for the energy for your brain, that semen energy. And you imagine that semen has the power of creating a whole new life. Okay, so just imagine how much power does it has, and when it goes to your brain, how focused you can, how you can increase your focus of the brain. Okay, means मैं तो बोलता हूँ यार 25-26 की उम्र तक आप ब्रह्मचारी रहो. Okay, and build insane focus. ठीक है, उसके बाद तो शादी करनी है, वो सारी चीजें फिर बाद में एंजॉय करो, बट फोकस पहले बिल्ड करो. एक बार फोकस बिल्ड हो गया ना तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. फिर एक एज के बाद उसकी वैल्यू भी पता चल जाती है, क्योंकि वो उतना बंदा मैच्योर हो जाता है. सो इट हैज गॉट, नोफैप इज रियली हैज हेल्प्ड अ लॉट मेनी पीपल in their career and in the sense of the focus and all, because distractions कम हो जाती है. So if you allow, I can talk it more openly. Yeah, sure. Okay. Okay. So if we talk about masturbation, okay, for the boys, ठीक है, masturbation hinders their sex life in future. Okay, कैसे? I tell you. See, while doing masturbation, the grip that they have, okay, is tighter than the when they have sexual intercourse. Okay. So what happens if they are addicted to masturbation? उनको sexual intercourse में मजा नहीं आता. They are not satisfied. What they do is they leave that sexual intercourse and they again come back to masturbation. Okay, it hinders their sexual drive, it hinders their sexual life, it hinders, because of that is also one reason that relationships are being broken. So yes. I suggest people that masturbation, do not do masturbation, and हाँ, body की need होती है, but control करना भी जरूरी है, मतलब ऐसे. Again, it's like there could be a healthy pattern of it.
लाइक इफ यू आर डूइंग दिस मेनी हाँ टाइम्स कि वो आपका न्यूरो पैटर्न ना बन जाए कि इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं. हाँ, इट्स अबाउट चैनलाइजिंग द एनर्जी, या channelizing the energy. मतलब होता क्या है कि even if you do not masturbate ना, if the sperm body itself has a mechanism which automatically ejaculates it if it's more in your body, either it ejaculates or it has been absorbed as a energy for the brain. So it has got a lot of benefits to the people, and lot of people are unmarried till now just because they have to follow the brahmacharya, as it is helping them in their career and building their focus, building into a good spiritual life, and they are doing good in their careers. I have seen a lot many people, and I think that is the reason what I would do. It's I want really to best. focus on two things here. एक तो यही कि द वैदिक थिंग दैट यू सेड कि पहले जो कल्चर चलता था वो एक्चुअली बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल था टू फॉलो ब्रह्मचर्य टू अ हाँ, सर्टेन एज लेवल, क्योंकि वो आपका बिल्ड करेगा आपका फोकस, आपका रेजिस्टेंस, आपका एवरीथिंग. And second, about yeah, like you said, the Seema Anand also emphasized on the same fact of Kama Sutra कि लोग बोलते हैं कि ये बस इन्हीं चीजों के लिए, but actually it teaches you the way of life, how to have conversations, yeah. how to connect with people on a deeper level, on an intellectual, spiritual, emotional level, rather than just the physical attraction and stuff. So ये भी बहुत बड़ा misconception है, myth है that you broke today. So thank you for those two things. Yeah, can I tell you that talking about sex or these all things is not bad. मतलब some people still feel insecure to talk about these things. But I tell you, ऐसा बोलते हैं कि 3 जरूरी चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान. 3 नहीं होती, 4 होती है. सेक्स भी आता है उसमें. मतलब आप कपड़ा और मकान के बिना रह सकते हो, पर आप सेक्स और रोटी के बगैर नहीं रह सकते. एक्सटिंक्ट हो जाएगा ह्यूमन. Oh, that अगर is दोनों चीजें difficult. खाने का हाँ, तरीका, in खाने that का sense. तरीका बढ़ जाएगा. विदाउट सेक्स रिप्रोडक्शन नहीं होगा, आगे और ह्यूमंस नहीं बनेंगे. सो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड. That is an Yeah. important thing. I am always, I tell you, in psychology, when I study psychology, na, there these topics are discussed very openly with all the teachers, with HODs, with all the students. These are discussed very openly because we are going to come in front of the people who are going to have same problems, that we are going to counsel them. So Precisely. these things are discussed so openly. Na, first time I entered into the first class of it, and I was so glad that I am sitting into this class, and people are so open to these things. They want to learn, they want to share their learnings, and this is really what's needed. And I try to do this in my public sessions. I try to talk this about this into my public sessions. Yeah, it is so imperative because you said it exactly correct कि जो बातें पहले लोग करने से बच रहे हैं, इवेंचुअली वही प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करेंगे, एंड देन दे विल स्पीक द सेम थिंग्स इन अ थेरेपी बॉक्स with a Yeah. therapist. So it's better rather talk openly about it, learn and correct yourself and your patterns कि वही प्रॉब्लम Yeah. के लिए पैसे देके फिर आपको और न सीखना पड़े अलग से. Prevention is better than cure. Yeah, true. Okay, so I also have seen कि आप you're a great preacher, learner and understander of Bhagavad Gita. You have studied it a lot. So any key learnings that you want to share from it? How many do you want? 1, 2, 3, 4. Whatever you want to share. Okay, so first of all, I'd like to talk about the surrender thing. Okay, you have to surrender. Okay, so there is a shloka. It's in second adhyay, and it's the 7th shloka. It's said by Arjuna. So I'll just recite the shloka. It says that कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे. I forgot. हाँ, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयास्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्वाधि मां त्वां प्रपन्नम. Okay, so I have remembered it in a tune, so I just said it in tune. Okay, so it's a shloka by Arjun where Arjun surrenders in front of Krishna. Okay, so what happened? The story behind it is, in the first adhyay, Arjun was saying that I am not going to fight this battle. How could I kill my own relatives, my own brothers? Okay, so
then Krishna told him that you have to do this for dharma because they have done all the sins and that is adharma. Okay, so you have to follow the dharma, and then Arjun surrendered to Krishna that अब मैं आपके शरण में हूँ, अब आप मुझे उपदेश कीजिए. ठीक है, and from there real Bhagavad Gita started. Then Krishna's shloks come one after another. So surrendering is important. Arjun surrendered to Krishna, that's why he win the Mahabharata. Okay, हनुमान जी सरेंडर्ड टू लॉर्ड रामा. ठीक है, अगर आज हम सुनते हैं कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की. ठीक है, तो हाँ, हनुमान जी का रिकग्निशन अलग है. देखो, राम लक्ष्मण जानकी एक तरफ, हनुमान एक तरफ. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो झुके. आजकल लोग झुक नहीं रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सामने झुक रहा है. झुकना किसके सामने है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आप किस गुरु के सामने झुकोगे, आप किसके सामने झुकोगे जो आपको अच्छे से गाइड करेगा. बिकॉज गुरु से बड़ा शिष्य बनता है. गुरु तो बड़ा होता ही है, पर गुरु से बड़ा शिष्य बनता है. ठीक है, तो जैसे द्रोणाचार्य का एग्जांपल ले लेते हैं. द्रोणाचार्य ने एक एकलव्य को सिखाना मना कर दिया था. ठीक है, बट ही वॉज स्टिल लर्निंग. एक पेड़ के पीछे छुप के वो सीख रहा था द्रोणाचार्य जी से. ठीक है, तो एक सरेंडर होना चाहिए. आप किसको सरेंडर कर रहे हो? सो सरेंडरिंग इज वन थिंग. यू सरेंडर एंड डेफिनेटली यू विल गो अ लॉट. जो आदमी अकड़ता है, मतलब ऐसे ईगो यो करता है, वो गिर जाता है. बट जो सरेंडर करता है, जो झुकता है, वो बहुत ऊपर जाता है. तो दैट इज द वन लर्निंग. अनदर लर्निंग इज जब आपके लाइफ में सुख आएगा, आपको बहुत उछलना नहीं है. क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है. जब आपकी लाइफ में दुख आएगा, आपको फिसलना नहीं है. क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी है. ये भी दूसरे अध्याय का ही श्लोक है. द श्लोक गोज दैट आई डोंट रिमेम्बर द श्लोक. मतलब मेरा, हाँ, दूसरे अध्याय का आई थिंक सो ये 13वां श्लोक है. सो देयर द कृष्णा सेज कि सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह आता जाता रहता है. सो तुम्हें इसको टॉलरेट करना सीखना है अर्जुन. तो जब तुम ये सीख जाओगे, तब कोई भी चीज तुम्हें अपनी जगह से हिला नहीं पाएगी. सुख में उछलो मत, दुख में फिसलो मत. तो मंक माइंड वैसा ही रहता है ना. मंक माइंड मतलब हारा है जीता है, मंक माइंड न्यूट्रल रहता है ना. उसे सारी खुशी. चीजों को फेस. हाँ हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल. So that's pretty much. I have a lot of learnings from Bhagavad Gita. I can talk a whole lot for an hour with it. Yeah, I get that a lot. Okay, amazing. Wow, I had never in a million years thought it would go this deep, the podcast. I'm loving it. Behad mazedar. Thank you so much for watching this episode of Convo with Aish till the end. I really appreciate your attention and support. If you haven't seen the previous episodes of this podcast, please go to the playlist and watch them. If you want to get connected with the amazing guest of today, please go to the description and check out the links of their profiles. Of course, do not forget to subscribe to the channel, like this video, and share it with your friends, relatives, or any person that you think would find this valuable or useful. Put down your learnings, queries, or feedbacks in the comments, and I will see you soon in the coming episodes of Convo with Aish and with amazing and brilliant content on personal development, public speaking, communication skills, and hope no healing. Until next time, this is Ambivert Aish signing off. Love, love. See you soon.